one or the other platform. So we together raise people so that we can also grow. It is not about only females, it is about youth and children also. If I talk about myself, I'm Rekha. I'm a PGT and Senior Academic Coordinator in St. Anselm's North City School, Jaipur. I am a part of a global business also, wherein we give the training to people and then we bring them forward so that we can actually work for the sustainable development and can help the society, because everywhere we find problem regarding monetary issues are there for the females especially. So if anybody is finding monetary issues, we are doing XYZ, I am into this profession since 26 years, but somewhere we are stuck and then our mental health is affected. For that only, we have come up with another solution. We have actually connected with a company wherein we just putting a minimum of it that we can discuss this later. But yes, for the funds, we can get a great help from there if we work together, right, as a proper team. Then, as Harvandan ma'am came in contact, she came up with a vision that ma'am we can take, because she's a doctor. She came up with the ideas of taking the sessions on mental health. Malavika ma'am and she also came with the same thing that yes, again they had done one session on 5th of September working on the teachers' mental this stressful situation which they are facing these days. Now they have come up with another beautiful topic, that is suicide prevention. Because even I noticed few days ago my daughter was she's hardly 17 years. She was talking कि मामा AIR 1 रैंक का बच्चा जो नीट में सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट रैंक होने के बावजूद भी उसने अपने आप को kill kar diya. So that becomes again a challenging for us, how to overcome, how to let our children or people who are connected to us, show them the real worth of their, who they are, how they can come forward. So being doctors, they are helping us out. Another session we are soon on 7th October, we will be starting with the help of Arvandan ma'am, Malavika ma'am. And yes, of course, any one of you, if you really wish to connect with us, you can also come along, give the suggestions. We'll have the meeting on 25th of September, wherein we are starting with a session of mindful coaching, food for thought program, how we can train our brain to overcome such problems, wherein we go into the deep of this thing when we are not able to accomplish our goals. One thing only we have, the negative thoughts ki main nahi kar sakta. So in detail we'll be discussing regarding this later on. For today we'll be talking with Harvandan ma'am and Malavika ma'am. So I would like you to kindly welcome both of them so that they can actually share their insights. They are into this field, training people to overcome their troubles. So help me welcome both of them. Welcome Malavika ma'am. Welcome Harvandan ma'am. Give them a huge round of applause. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. So, we'll begin, ma'am. Oh, we Yes, should yes, wait. ma'am. I Of don't course. know. Okay. So, today, this month, ma'am, is first of all, I thank you. I thank the foundation that you have given platform for such a noble cause. And we are doing, it's a suicide prevention month. September 10th was the day. And for 3 years now, like first it used to be yearly, but now for 3 years, the same thing is there so that we can work more on that thing. So every September when the day comes, there's everybody is doing something or the other. So when everyone together does it, there's a more josh and all. So for the whole month, the people are really, really doing, and we've also done, taken sessions before also. But today we decided that we should focus more on the youth, the adolescents. And why we are doing this, that I'll be telling in the session. So now, आत्महत्या जो है, it is so paradoxical to life अगर देखा जाए तो. हर कोई इंसान, even at any age, किसी भी illness का हो, उसे क्या कोई भी illness हो, would want to live. So why is it that people commit suicide?
And the thing is that maximum suicide are in the age of 15 to 25 years. वो कहते हैं ना, वो हसीन दिन जैसे हम याद करते हैं ना, दैट वो पल थे जो हमारे विच वी लिव्ड अ लाइफ इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ. व्हाई आर पीपल गोइंग एंड डूइंग सच थिंग्स? एंड नाउ सिग्निफिकेंट अमाउंट हमें अपने बच्चों के लिए ये सब चीजें जाननी जरूरी क्यों हो गई हैं? क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सेल्फ हार्म, जिसमें डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, जिसमें शायद इच्छा मरने की नहीं है, हो सकता है अटेंशन सीकिंग हो सकता है अपनी बात मनवानी हो, बट क्या हो जाता है कि जब आप पहली बार अपने यू आर लाइक डन एन एक्ट, सो डेलिब्रेट सेल्फ हार्म जब हो जाता है ना, तो द रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड इंक्रीजेस. So the significant number of children from class 6th also have been found to be in this category. So we have to work, and now because the children are down till class 6, so and India की देखे तो 1/4 of the suicide of the world contribution is coming from India. Many reasons, I'll be talking about the reasons also, but many reasons are there. So one, we can say that we are the most important reason is that our country is only country of youth. Maximum population is there in our country. We are country of youth. So it is but normal that we can expect that these things are going to happen. तो अभी suicide जो है, it is not a mental health issue. It has become a public health issue now. Public यानी पूरी community का. And जो theme भी है इस साल की, it is to change the narrative, take action and let's start talking. बातचीत शुरू करिए. अब हश हश करके बातचीत करने का समय ही नहीं रहा है, मतलब हश करने का समय नहीं रहा है. अब अभी हमको बाहर आके बातचीत करनी है, एंड बातचीत करनी है हमको, मतलब we have to be bold enough to talk about it, discuss it. The causes will be told. There is no blame game. Blame game हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें आपका सहयोग चाहिए. So, but अगर आपको नहीं पता होगा, if the public doesn't know कि भाई these are the things where issues are arising from, because 90% तो mental health ही है, mental disorders, उसमें maximum जो है वो depression है, और फिर बाकी और में तो सब्सटेंस भी बहुत, नशा भी एक जो चीज है बहुत, 25% जो है डिप्रेशन वो कॉज करता है, और मतलब 90% लोग डिप्रेशन में जाके सुसाइड करते हैं. पर ये डिप्रेशन क्या सिर्फ बायोलॉजिकल कारण से है कि इसके बाकी भी कारण है? क्योंकि अभी तक फोकस वाज मोर ऑन ट्रीट द मेंटल डिसऑर्डर्स. अभी तक हम तो एक्चुअली स्टिग्मा पे ही पड़े हुए हैं, वो ही इतना बड़ा एक साइकोसोशल रीजन है. जबकि इन एवरी सीरीज, जबकि स्ट्रेस की सीरीज में भी, सब सीरीज में समझाया जा रहा है कि शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, ये दोनों तनाव के कारण हो रही हैं. एटलीस्ट मोर देन 85 to 90% illnesses are related to because of the effect of stress on you. तो अगर स्ट्रेस से आप फिजिकली इल हो रहे हैं, और स्ट्रेस ही है जो आपको मेंटली इल कर रहा है, क्योंकि बॉडी माइंड में कोई भी गैप नहीं, इतना सा एक, मतलब 0.0% भी 1% भी गैप नहीं है, तो स्टिग्मा आप मेंटल हेल्थ को दे रहे हैं. तो लोग क्या है कि दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, और ना इलाज. सपोज आपको बीपी है, आप इलाज नहीं लेंगे तो बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लिकेशन होके हार्ट पे इफेक्ट होगा, अटैक्स होंगे, एंड वी नो बहुत कुछ हो सकता है. तो क्या ये यही? यस प्लीज, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, मोर देन वेलकम. Harvandan, before we proceed, those who have joined, because what happens, people come in and join, and we need to provide the certificates. So I would request you to kindly turn on your camera so that we can at least take a screenshot
and later एक- on the certificates could be provided along with your name. मैं Pet यहाँ पे lovers, Redmi pet lovers Group का 8 group भी है पढ़ पा रही हूँ. So and Balvinder sir, can you please mute yourself? बेसिकली क्या है? Balvinder sir, Malavika question ma'am, है, please kindly mute. If मैम you will click on जो the name, उसमें mute आ जाएगा. एक बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए because it could again literally it becomes difficult for us to issue the certificates. If you can please turn on your camera for a second so that I can click the photograph with the names. And then ma'am, by the time you can continue, they'll just turn on the cameras. Yeah, you can continue. तो बेसिकली हमें स्टिग्मा इसलिए नहीं देना है, हम यहीं पे फंसे हुए हैं. तो जब ये पब्लिक हेल्थ इशू बन गया है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना है, बच्चे तक हमारे अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और which I stated just to summarize it, till class 6th it has come down to significant level, although still as per statistics मैक्सिमम आत्महत्या जो हो रही है वो 15 से 25 साल में हो रही है. इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद नहीं हो रही है, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं. तो एक चीज स्टिग्मा जो बताया, और ये स्टिग्मा कहाँ से आता है, बिकॉज हमें अवेयरनेस नहीं है. तो हम अवेयरनेस कैसे लाएंगे? अवेयरनेस तो हम लाएंगे जब हम क्या कहते हैं, बातचीत करेंगे ना. लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन, जो थीम है, लेट्स टॉक. तो जो भी मन में डाउट है उनको डाउट मत रहने दीजिए, प्लीज क्लेरिफाई देम, एंड दैट विल बी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कुछ चीजें आपको पता होंगी, जो चीजें डाउट है उन्हें जरूर क्लेरिफाई करके जाइएगा. तो अगर हम इश्यूज देखें कि हमारी युवा पीढ़ी के, तो अब हमें WHO से भी गाइडेंस आ गई है कि वी हैव टू गो बियॉन्ड द मेंटल हेल्थ इश्यूज. क्योंकि मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया, सब्सटेंस, नशा उशा, जो भी हम लोग इन सिवियर मेंटल इलनेस में डाल रहे हैं, तो जो भी ये है, इनके कारण तो होते हैं ना, सामाजिक, आर्थिक. ये कारण जो है, अगर हम इन पे काम नहीं करेंगे और किसी की सिर्फ डिप्रेशन ठीक कर देंगे दवाई देके, तो ये ऐसा हुआ कि जैसे हमने बुखार ठीक कर लिया, पर बुखार का पैरासीटामोल दे दी, बुखार तो हो गया ठीक, पर वो फिर से चढ़ने वाला है. तो वी हैव टू नो कि कहाँ से हमारे बच्चों में, मतलब क्यों इतनी जल्दी हमारे बच्चे कहने लग गए हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू. मतलब दिस वाज द एज विच आई थिंक आई कैन गो बैक टू, आई विल एंजॉय अगेन. और अब ये हो गया है कि मतलब स्टेट हैज कम टू, पीपल वांट टू एंड देयर लाइफ एट दिस स्टेज. तो क्या है ये सामाजिक कारण, क्या है ये आर्थिक कारण? तो अगर हम ले लें गरीबी, कर्जा, बेरोजगारी, तो हमारी आर्थिक मुश्किलें जो हैं ये बढ़ जाती हैं. ठीक है, पर क्या हो गया है, एक तो ठीक है, कई चीजें मैं लेटर के लिए भी, सबने फोकस, सबके जो इन चीजों का पब्लिक हेल्थ इशू है, तो पूरी कम्युनिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट हैज टू कम इन टू सॉल्व द इश्यूज. तो नाउ अब कहाँ से, वन ऑफ द कॉजेज जहाँ पे ये इश्यूज दे आर स्टार्टिंग इज आर्थिक, फाइनेंशियल इश्यूज. सब में there is not joblessness, सब में the job means there are quite a few number of people who don't have job, but what about the people who have jobs? क्या हो गया है कि देखा देखी इन द सोशल मीडिया, अब लोग फॉर योर, आपकी नीड्स के लिए तो इट्स ओके दैट यू टेक सम लोन टू फुलफिल योर नीड्स, बट अगर आप EMI पे विदेश की यात्रा करना जा रहे हैं और फिर फोटो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, डाल रहे हैं देखा देखी में जस्ट, तो देन इट्स रियली डिफिकल्ट. दिस सोशल मीडिया हैज कॉज्ड सो मच प्रॉब्लम्स आल्सो. सो वी हैव टू नो बाउंड्रीज की कितनी चादर है, कहाँ तक पाँव हमने अपना हम फैला सकते हैं. So some issues are, yes, in our hands, some issues are the community will as a whole work, and some issues, yes, the government has to do. Because ना 3 areas होते हैं, एक होते हैं control, locus of control, yeah, circle of control.
जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वो तो बेस्ट है। सबसे आसान काम अगर देखे तो खुद को चेंज करना है। एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, इनमें क्या आता है? इनमें आता है वो कंटेंट्स जो हम देख रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए हैं आजकल तो। और एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, जो हमारे हाथ में नहीं है पर हमें इफेक्ट कर रहा है, वो चीजें कई हद तक गवर्नमेंट कैन सॉल्व। सो तीनों जब तक इकट्ठे काम नहीं करेंगे तब तक दीज इश्यूज आर, मतलब we have to work on these three issues if we have to fight this battle। तो स्टिग्मा तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसपे मैंने बातचीत कर ली। देन योर इकोनॉमिक इश्यूज, जो कि हम कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो है कि सोशल मीडिया की देख रेख जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, नाउ समन हैज आस्क्ड कि भी ये जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक प्रेशर का क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी गुड, मैं उसे कवर करने वाली थी, बट सिंस इट्स आस्क्ड व्हाई नॉट आंसर इट नाउ। तो ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों पे सिर्फ एकेडमिक्स और एकेडमिक्स पे ही ध्यान दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को पर्सनालिटी डेवलप कर नहीं रहे, ना ही हम उनको कोई भी लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं। और बच्चों को सिर्फ एग्जाम नहीं पास करना है, अगर उन्हें लाइफ स्किल्स नहीं आएंगी तो वो लाइफ के इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। और ये एकेडमिक प्रेशर पे ये कोटा जो कि ये जो है ना, माइंडसेट हमें निकालना है। छठी क्लास से एक बच्चा अपने घर से दूर हो जाता है या माँ चली जाती है तो घर का वातावरण दोनों तरफ से तनाव में होता है, जो कि वो बच्चा तनाव बच्चे पे रिफ्लेक्ट होता ही होता है। और फिर क्या होता है कि आपने कई बार माँ बाप ने इतने लोन्स लिए होते हैं जो कि बच्चे को बताए जाते हैं, और कई बार हम ऐसे कर वो भी तनाव उस बच्चे के दिमाग में काम कर रहा होता है, सिर्फ पढ़ाई करने का नहीं। तो और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाएं अपने बच्चों से, वी वांट आवर विशेस व्हाट वी कुडंट डू, कि वी शुड सी दैट आवर चिल्ड्रन आर फुलफिलिंग। तो वो चाइल्ड को डिसाइड करने दो ना उसे क्या बनना है। आजकल बहुत एवेन्यूज हैं, वो जमाना गया, देर आर मेनी एवेन्यूज, चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे नो दे एवेन्यूज। और आजकल जमाना एक्चुअली सर्टिफिकेट और नंबर वाला रहा ही नहीं है, स्किल्स का रहा है। तो हमको स्किल्स भी तो डेवलप करानी है बच्चे की, हम उसको बैठा के बस पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बैठ के पढ़ ही जा रहा है। अच्छा, अगर तो उसने ही द चाइल्ड इज टेकिंग सम यू नो ब्रेक, तो वहां पे भी हमें इश्यूज आ जाते हैं। बट ये दिमाग है, मशीन नहीं है, मशीन भी ऑफ करते हैं ना हम। इफ यू डोंट ऑफ योर कंप्यूटर इट विल ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड। तो फिर द चाइल्ड विल नो कि मुझे ब्रेक चाहिए, तो लेट द चाइल्ड टेक अ ब्रेक। उस ब्रेक में उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलती, वो पेरेंट्स उसके पीछे पड़े रहते हैं। अगर तो योर चाइल्ड इज नॉट स्टडिंग एट ऑल तो यस, आप उसे मोटिवेट जरूर करिए। अगर उसको बॉडी बता रही है कि भाई अभी ब्रेक ले ले, तो प्लीज लेट द चाइल्ड। अगर वो वैसे पढ़ रहा है पूरा दिन 24 घंटे, कोई नहीं पढ़ सकता। आप ये लेक्चर सुनेंगे, मतलब बोलने को तो मैम हम दोनों मिलके पूरा अभी 24 घंटे भी बोल सकते हैं, फिर भी हम कितना लिमिट कर रहे हैं अपने आप को। Hardandan क्योंकि ma'am, today only, yeah, here I would like to mention, today only we attended, means we had conducted an orientation session regarding, ma'am has asked the question how to actually prevent these children who are doing JEE और ये जो नीट वाले जो बच्चे होते हैं मैम, वो एक्चुअली में सुसाइड करते हैं। तो उनके लिए ना सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा, बीइंग टीचर्स हमें भी ये समझना पड़ेगा, या जहाँ पे भी हम लोग काउंसलर्स हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे की जो 7 to 8 आवर्स की जो नींद है वो अगर कंप्लीट नहीं है तो आप अपनी साइकिल को खराब कर रहे हो। हम लोग पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारा 6 घंटे पढ़ ले, 4 घंटे, सॉरी 4 घंटे 6 घंटे सो के भी कर सकता है, सक्सेस नहीं करेगा। जेई और नीट का बच्चा अगर उसके पास में 5-6 साल का प्रैक्टिस है और वो रात में जग के पढ़ रहा है, तब उस बच्चे को आप अलाउ कीजिए, वरना अलाउ मत कीजिए कि वो रात में पढ़े। उसको 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक एक काम स्लीप अगर वो लेगा ना, तो उसकी बॉडी उतनी ही इफेक्टिवली काम करेगी जितना वो
क्योंकि थकी हुई बॉडी कभी भी काम नहीं करेगी। और आजकल का फैशन बन चुका है बच्चों के अंदर, वो कूल समझते हैं अगर वो रात में बैठ के स्टडी करते हैं। तो जो स्टडी पैटर्न है ना, सबसे पहले तो एज मेंटोर्स हमें लिटरली ये प्रमोट करना पड़ेगा कि जो स्लीप है वो 10 to 5 या 9 to 4, कम से कम 7 to 8 आवर्स चाहिए। 7 घंटे से कम अगर बच्चा सो रहा है तो वो किसी भी सूरत में सक्सेस को नहीं देख सकता। हाँ, लास्ट के डेज जो प्रेशर वाले होते हैं वहां थोड़ा वो ज्यादा टाइम दे सकता है, लेकिन थकी हुई बॉडी कभी भी नहीं करेगी। तो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो है स्ट्रैटेजी, कि वो कैसे करे। उसके लिए हम नेक्स्ट जो सेशन लेंगे मैम, 100% हम इसी का ही लेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, एग्जाम भी आ रहा है दिसंबर में इनका, जनवरी में ये जो जेई वाला आएगा ना मैम, वो बड़ा समय आएगा जब बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही चाहेंगे कि हम रात रात बैठ के पढ़े। मैम रात रात बैठ के पढ़ाई नहीं होती। पूर्णिमा मैम, यू आर आस्किंग समथिंग? यस मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। मैम ये जो कोटा वगैरह जो है ये कोचिंग क्लासेस, एक्चुअली वो लोग ने भी ऐसा एक सिस्टम बना लिया है कि जो उनका रेगुलर क्लासेस चलता है, वो चलने के बाद भी मैम वो लोगों ने अभी एक स्टडी टाइम कर दिया है। अब समझो बच्चा जाता है सुबह 8 बजे क्लास करने के लिए, और 1:30 बजे घर पे आता है, 1:30 2 बजे क्लास घर पे आता है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा सिस्टम कर दिया है कि 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक तुम हमारे सेंटर पे आओ और पढ़ाई करो। अब बच्चा तो कुछ लिख रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, पर एक्चुअली में कर क्या रहा है वो कौन चेक कर रहा है? अब कैमरा तो हर वक्त वो बुक पे नहीं रहेगा कि वो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और इतना, अब जैसे मैं एक टीचर हूँ मैम, हमको ऐसा है कि बच्चा का कंसंट्रेशन का जो लेवल है, हमारे जो क्लास के पीरियड्स भी होते हैं लेक्चर्स के, वो 25 मिनट्स मैक्सिमम 35 मिनट्स का एक रहता है। कि लॉजिकली देखा जाए तो बच्चा 20 20 मिनट्स मैक्सिमम 25 मिनट्स एक चीज पे फोकस कर सकता है। और ये जो सिस्टम है कि तुम 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो बच्चा क्या पढ़ रहा होगा, कितना, मतलब एक्चुअल में ऐसा है क्या, ये फैक्ट है क्या कि उतना कंसंट्रेशन कर सकता है क्या बच्चा? मैम हमें बीइंग अ टीचर हमें ये पता है कि 30 से 40 मिनट एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकते। बाकी हरविंदर मैम और मालविका मैम, दे आर डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हैं, तो ये अपने आंसर को जरूर दे पाएंगे प्रॉपरली। मैम ओवर टू यू। जी। यस, यही एकेडमिक प्रेशर्स में, लाइक ब्रेकिंग द एकेडमिक प्रेशर्स इनटू स्मॉल स्मॉल बिट्स। तो एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट एग्जाम्स में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग सर्टेन थिंग्स। घर से शुरू करनी, स्कूल में जानी है, और वो क्या है कि वी हैव टू टेल द मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड एज अर्ली एज पॉसिबल व्हाट इज दिस पर्पस इन लाइफ। ये समझाना उस बच्चे को बहुत जरूरी है समझना। सिर्फ ये नहीं है उसका जिंदगी का पर्पस कि उसे नंबर लाने हैं। नंबर पे नंबर वाली जो स्थिति है वो जा चुकी है। स्किल्स क्या है, किन पे वर्क करना है, और ये वाली जो स्थिति है दैट इज द स्टेट अभी वो बच्चों को अगर वो पढ़ें। सो अगर हम सिर्फ मार्क्स वाली स्टेट पे रहेंगे तो बच्चे स्किल्स डेवलप करेंगे नहीं। कितनी देर तक कितना रट्टा मारने वाले हो आप मैम, कितना? और तभी तो सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज पहले से ही पहले तो पढ़ाई के सिस्टम्स, हमें हाउ टू स्टडी, उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर लिया जा सकता है कि हाउ यू शुड स्टडी फ्रॉम बिगनिंग। कि दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारी चीजें एक्चुअली अगर इतना आसान होता ना मैम, तो एवरीबडी वुड बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। बट सक्सेसफुल पीपल वी कैन काउंट। तो एटलीस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मतलब हर वक्त आप अगर बैठे हो तो दूसरे से ही compete कर रहे हो। भाई, आपके बच्चे को अगर सपोज 92% आए, किसी और के बच्चे को 98% आए, तो उस घर में तो खुशी नहीं मनाई जा रही है ना। वो तो प्रेशर है, तो बच्चे के दिमाग में भी प्रेशर ही चली जा रहा है। और फिर उसके बाद तो वो बच्चे के 92 आए या 98 बैठेंगे, तो दोनों ही बैठेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या काम आएगा? आपकी एक्चुअल नॉलेज। और वो स्किल कहाँ से आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो हाउ टू मेमोराइज एंड टू कीप इट इन मेमोरी।
अब मेमोरी में तो चीज जाएगी कैसे? पहले तो कंसंट्रेट होगा तो चीज हम भूलेंगे, क्योंकि अगर कहीं तो मेमोरी बनेगी तो उसके बाद वो स्टोर होगी। तो अगर वो बन ही नहीं रही है क्योंकि हम कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने ठीक बोला, नींद कितनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी बनी है, जो हमने पढ़ा है, उस मेमोरी को कंसोलिडेट होके स्टोरेज वाली स्पेस में जाने के लिए नींद में होते ही ये काम। तो नींद पूरी नहीं होगी तो मेमोरी तो बनने नहीं वाली। फिर वो बच्चा जैसे बोला कि ना तो कंसंट्रेट कर पा रहा है। अच्छा, क्या वो बच्चे को जरूरत नहीं है जो नेचुरल एंटी स्ट्रेस चीजें नेचर ने हमें दी हैं, क्योंकि हम ऐसी साइकिल में पड़ चुके हैं। तो स्लीप इज गोइंग, जहाँ पे वी कैन इजिली कंसोलिडेट आर मेमोरी, मेमोरी जो है उसको फिक्स स्टोरेज में डाल सकते हैं। फिर हम एक्सरसाइज, वो बच्चा कर रहा है क्या? वो बच्चा कहाँ एक्सरसाइज करेगा जो इतना पढ़ रहा है? पर एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्सरसाइज है, उसमें एंडोर्फिन्स, एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो जो तनाव आपका चीजें कम कर रहा है। हाँ, ये सब सीबीएसई के बच्चों, आ, हाँ, टीचर्स आर बॉन्डेड, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कम्युनिटी को आना पड़ेगा, और उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है। मतलब किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है ये। टीचर्स आर ऑल्सो बाउंडेड, मैं टीचर्स के ऊपर दोष नहीं डाल रही हूँ। हमें समझना है समस्याएं कहाँ हैं, तभी तो हल होगा। तो कई चीजें तो गवर्नमेंट को भी समझनी है, गवर्नमेंट ने भी डिसीजंस लेने हैं, उस पे भी बातचीत की जाएगी। सो बट द सैड थिंग इज कि देर इज नो रेप ऑफ गवर्नमेंट हियर। बट ये जब जाते हैं, व्हेन दे दीज लेक्चर्स दे गो ऑन द सोशल मीडिया, तो कोई ना कोई तो होता है किसी पोजीशन में हेल्प करने के लिए। सो वी शुड नॉट थिंक कि बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली, देर आर पीपल जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं। सो ये सब सबके लेवल पे अपना सब काम चल रहा है। तो फिर वो बच्चा ठीक से खाएगा नहीं, क्योंकि वो इतना थका होता है, थकावट में भूख मर जाती है, उसको लगता है कि वो थोड़ी देर में सो ही जाऊं। जैसे आपने वो ये बोला कि वो आते ही उसको फिर जाना है, तो वो नेचुरली थोड़ी नींद पूरी कम पहले तो करना चाहेगा। पर अब हमारी जो गट है, हमारे जो स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये है ना, गट ब्रेन एक्सिस में, हमारे जो गट में इतने ब्रेन के सेल्स पाए गए हैं कि हमारी गट हमारा सेकंड ब्रेन है, और ये हमारा मूड और मेमोरी डिसाइड कर रहा है। तो जब ये खाली है तो कहाँ से आप खाना छोड़ के कि मैं खाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगा, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो कहाँ से आप सोच रहे हैं? और ग्लूकोज नहीं चाहिए आपके ब्रेन को, वो तो ग्लूकोज पे काम करता है। तो ग्लूकोज नहीं होगा तो काम ही करना बंद कर देगा। तो ये चाहे आप 10वीं में हो, आप 12वीं में हो, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, या आप इंजीनियरिंग का दे रहे हो, और आईएएस एंड ऑल दीज हायर एग्जाम्स में, तो फिर वी गो टू लेवल ऑफ माइंडसेट्स एंड ऑल आल्सो। तो वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। बट बेसिक आपकी जो नींद है, आपका खाना, पता है आपको कि अगर इतनी देर तक आप बैठे हो बिना पानी पिए, तो आपके 70% हमारा शरीर पानी का बना है, 75% तो हमारा ब्रेन पानी का बना है। तो 75% अगर ये श्रिंक हो जाएगा, तो फिर सारे एरियाज जब श्रिंक होने लग जाएंगे तो वो काम भी तो कम करेंगे ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बेसिक्स जो लाइफस्टाइल हैं। अच्छा, ये बच्चे सोशल स्किल्स नहीं जानते। अब लेट्स कम ऑन सोशल स्किल्स है, मोबाइल एडिक्शन हो गई है लोगों को इसकी। बच्चे जब लेके आते हैं हमारे पास, तो उसके 2 साल से पहले, मतलब मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन पूरे अलग टॉपिक्स हैं, सो आई विल बी जस्ट टचिंग देम। तो कौन उनको बताएगा? मतलब कि किसने दिया मोबाइल हाथ में? पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 साल से पहले देना ही नहीं है भाई, देना ही नहीं है। और उसके बाद कितने साल पे कितने घंटे किस टाइप की सुपरविजन करनी है, कि आपको पता है कि यू हैव टू चेक द चाइल्ड्स मोबाइल, पुट सर्टन चाइल्ड लॉक्स। मतलब साइबर बुलिंग और क्राइम इतने बढ़ गए हैं जो हम ओपीडी में देख रहे हैं। इसके लिए बच्चा जिम्मेदार है कि क्रिमिनल जिम्मेदार है? मतलब कौन जिम्मेदार है? अब हो ये रहा है कि बच्चा तो भोलेपन में कर रहा है, और फिर वो आपसे डर रहा है, और फिर वो गलती कर रहा है और बता नहीं पा रहा है, और गलती में फंस रहा है। और अब
एज अ कम्युनिटी अब हम क्या करते हैं, अगर हम देखें कि किसी एक अगर हम इसको कोरिलेट साइबर क्राइम को करने वाले सेक्सुअल वायलेंस से, बुलिंग बुलिंग टाइप की हो जाती है ना, कि जबरदस्ती आपको ये इस टाइप के कुछ काम करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो अगर एक केस में हमने हैंग भी कर लिया, और एक बहुत रीसेंट केस है, मैं नाम नहीं लूंगी, सबको बता, उसके बाद क्या कुछ कम हुआ? तो क्या है कि हमें बच्चे को, एक तो हमें एज अ कम्युनिटी साथ आना है, और ये नहीं देखना है कि सेक्सुअल वायलेंस में सिर्फ वो वहां क्या कर रही थी, उसने इतनी रात लेट क्यों थी, उसने क्या पहना हुआ था। क्योंकि अगर मैं आपको सेक्सुअल वायलेंस का डाटा दूं तो रिपोर्टेड है, और ये जो सुसाइड के डाटा भी है सिर्फ रजिस्टर्ड वाली हैं। तो हमारे ही देश में देर आर अबाउट इन अ डे 89 फीमेल्स, हाँ, और ये सब मेल्स के साथ भी होता है, पर रिकॉर्ड ज्यादा फीमेल्स का है, रिपोर्टिंग शायद नहीं हो रही अभी, बट 89, इतनी ज्यादा 89 पीपल आर बीइंग रेप्ड इन अ डे, ये रिपोर्टेड है। तो ये जो है, दोषी कौन है फिर इसमें? जो जिसने किया है रेप, की दोषी वो है जिसका रेप हुआ है? ये मानसिकता समाज की बदलनी है। अपने बच्चों को, बेटे को भी कुछ सिखाना है और बेटी को भी कुछ सिखाना है, और सिखाना है तो भी बेटे को ज्यादा सिखाना है। क्योंकि अगर आप सारी, मतलब प्रॉब्लम भी बेटियों के साथ हो रही है और घर पे भी बेटियों को ही बैठाओगे, तो ये तो कोई हल हुआ नहीं ना। प्रॉब्लम तो फिर उसमें है जो आपकी बेटियों को घर बैठा रहा है, तो उसको कौन सिखाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? सेक्स एजुकेशन अगर आप कर लो तो वहां से इश्यूज शुरू हो जाते हैं। हमको समझना है कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा जानते हैं, जो हमें लगता है दे आर वेरी इनोसेंट, उनमें काफी कुछ पता है। आप जस्ट यू ओपन द मोबाइल, यू विल नो। पर ऐसे एड्स आते हैं, ऐसे पता ही नहीं चलता, फ्लैश हो जाते हैं। आप टीवी में भी देख लो, आप सिर्फ मोबाइल की बात मत करो, आप यू सी द टीवी ऑल्सो, टीवी पे क्या हो रहा है। सो हमें ये जो मोबाइल्स हैं, ये सब कब लेने बच्चे ने, वो उसके चाइल्ड लॉक्स क्या हैं, वी हैव टू। अच्छा, हम घर आए, हम नहीं एडिक्ट हैं क्या? आर वी नॉट एडिक्टेड? हम भी तो आके अरे घर आए हो, बच्चे के साथ टाइम बिता सकते हो कि नहीं? आपको भी तो एडिक्शन हुई हुई है। आपको कोई क्यों कुछ नहीं कह पाता, इसलिए आप बच्चे को ही लेके आते हैं, पर बच्चा वो नहीं करने वाला जो आप कह रहे हो। लेट मी टेल यू, बच्चा वो ही करेगा जो वो देख रहा है। आपके पास समय ही नहीं है बच्चों के लिए, तो क्या आप उसका मोबाइल चेक करेंगे? क्या आप उसका कंटेंट चेक करेंगे? क्या आप उससे बात करेंगे? आप उससे बात ही नहीं करेंगे तो आपकी बॉन्डिंग क्या बनेगी अपने बच्चों के साथ? लगभग पता है, ये भी डाटा ही है, 15-20 मिनट ही बात करते हैं आम और लोग बच्चों से। तो कहाँ से उसकी बॉन्डिंग होगी? ऊपर से फैमिलीज होगी न्यूक्लियर, तो किसके पास जाएगा वो बच्चा? आप भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठा है ना, आपको होश है तो उसको क्यों होश होगी? उसको तो इतनी समझ भी नहीं है। तो और फिर ऊपर से कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो जिसकी दे चैलेंज, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन को जो सुसाइडल आइडिएशंस ले, कि भी शायद हो सकता है, मैं बता रही हूँ कि वो अटेंशन सीकिंग कर रहा हो सकता है, अपनी बात बनवा रहा हो, पर ये राइट कोपिंग नहीं है। हमें बैठ के उससे बातचीत करनी है, और हमें बच्चे को नहीं गलत कहना है, यू आर अ बैड बॉय नहीं कहना है, द बिहेवियर इज बैड करना है, हमें किसी को लेबल नहीं करना है। फिर तो मेरे मन में बैठ ही गया ना कि आई एम बैड, तो फिर तो मुझे कोई ठीक ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं तो हुई बुरी, तो फिर ठीक भी होंगी तो लोग बुरा ही बोलेंगे, तो इससे अच्छा मैं बुरी रहती हूँ। तो कम्युनिकेशन आपकी आपके बच्चे के साथ बहुत जरूरी होनी है, और उसमें जब वो बच्चा आपके ऊपर, आप इसे एजुकेट करते रहेंगे, एज वाइज बातचीत करते रहेंगे, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये समझेंगे, तब वो बच्चा जब उसके साथ ऐसे क्राइम्स होंगे तब तो ना वो आपको सही समय पर बता सकेगा। फिर भी लोग उसके बाद भी छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपने बच्चे के बारे बता दिया तो समाज उसी के बारे सोचेंगे कि इसने ये काम कर दिया। पर ये समाज में किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, तो वी हैव टू, जैसे हमें ये स्टिग्मा निकालना है मेंटल हेल्थ का, तो जो सेक्सुअल वायलेंस के जिनके ऊपर असॉल्ट्स हुए हैं,
तो हमें उनके ऊपर से भी स्टिग्मा निकालना है। एक तो बेचारों के ऊपर इतना, मतलब ये तो स्ट्रेसर भी नहीं, ये तो हादसा, ट्रॉमा, इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऊपर से हम उन्हीं को दोष दे रहे हैं। पर कहाँ से शुरू हो रही है कहानी? अगर हम सोचें बैठ के, तो इसमें हम कितने बदलाव ला के एज अ कम्युनिटी, बिकॉज अगर एज अ कम्युनिटी हमें ये सब पता होगा, और ये देख के मत सोचना कि ये पानी मेरे घर तक नहीं आ सकता, वो पानी है, वो तो बहेगा कहीं भी, उसकी मर्जी है, तो वो कहाँ जाए के रुकेगा, ये आप नहीं तय कर सकते। तो वी हैव टू हैव अ हेल्पिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी। अगर आप देख रहे हैं कहीं कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो प्लीज जाके आपका भी उतना ही, क्योंकि कल आपके बच्चे के साथ होगा तो फिर ठीक है, फिर आप नहीं, आप बोलते ये मेरी समस्या नहीं, दूसरा भी वैसे ही सोचेगा। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो लोग आगे आएंगे। एंड इट्स नॉट ऑलवेज कि व्हाई शुड आई स्टार्ट फर्स्ट, इट शुड बी कि व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट फर्स्ट। क्यों नहीं मैं वो व्यक्ति हूँ जो ये नेक काम पहले शुरू करे? आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा ना। अगर आप भगवान में मानते हैं, तो मतलब जिस किसी चीज में भी, कई हायर पावर किसी में भी मानते हैं, ठीक है, तो मतलब, या फिर कह लीजिए कि खुद को बेवकूफ तो नहीं बना सकता ना कोई, अपने मन में तो पता है ना उसको कि वो क्या कर रहा है। तो कम्युनिटी को समझना बहुत जरूरी है। देन we've talked about academic pressures, talked about, yes, we've talked about there are houses अब जिसमें there are issues of marital discord होते हैं। now sometimes what happens कि बच्चा बीच में फंस जाता है, इसकी साइड लूं या उसकी साइड लूं, या पूरा ही निग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी तनाव आता है, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत मजा आ रहा है लड़ने में, तो अपने स्ट्रेस में बच्चे को भूल जाते हैं। So one can take a help from anyone, na? And don't stigmatize going. If you require to go to a counselor, if you want to go to, if you need think that I've gone into depression, please take treatment or take some decision in your life. But let it not be so late that the child is already scarred for life. और यही देखते देखते एक कूल वर्ड से मुझे किसी ने यूज किया था, मैम ने शायद यूज किया हो कि अ, अभी तो रिलेशनशिप्स होने बहुत कूल हो गए हैं। तो मतलब अभी सिटिंग इन द ओपीडी बड़ी जगहों पे माँ बाप कितने भरोसे से बच्चों को भेज रहे हैं, पर हमारे पास तो इतने छोटे छोटे बच्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कूल हो गया, ये पीयर प्रेशर कहते हैं। जिसकी नहीं है ना, वो ऐसा उसको दिखाया जाता है कि तेरे में कुछ कमी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, जो बच्चे ऐसे नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें लाइफ स्किल्स सिखानी है बच्चों को, इसीलिए हमें उनको सिखाना है इमोशनल रेगुलेशन, कि हर छोटी चीज के ऊपर हम ना उस चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करें, और अगर लोग क्या कहेंगे इस चुंगे से बाहर निकल जाएं, तो हम इतने प्रेशर से बाहर आ सकते हैं। तो लाइफ स्किल्स तो इज लाइक अनदर, इज अ होल मॉड्यूल ऑन इट्स ओन। तो हमको बच्चों को, अब ये बच्चे ना इन्फैचुएशन को कहीं ना कहीं लव से रिलेट कर रहे हैं। अब इन्फैचुएशन की स्टेट में तो बंदा बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है ना, पर कितनी देर आप नकाब रखोगे अपने ऊपर, कितनी देर? तो फिर क्या होता है, क्योंकि वो तो लव है नहीं, तो नकाब भी निकल जाता है। फिर जो इमोशनली, यू नो, जिसको ज्यादा इश्यूज होते हैं, वो बंदा आता है आपसे इतने छोटे, जब आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही, फिर आप उनसे पूछते हो आराम से, बिकॉज ऑब्वियसली पहले तो उनका डिस्ट्रेस निकालना है, फिर उनको समझाना पड़ता है कि उनका लाइफ में एम क्या है, गोल क्या है उनका, वो किस लिए यहाँ आए थे। तो फिर उनको रिलेशनशिप्स के बारे में बताना पड़ता है भाई, कि एक इन्फैचुएशन होती है, फिर अट्रैक्शन होती है, फिर अटैचमेंट होती है, तब जाके कहीं लव आता है। तो मतलब ऐसे इतने हजारों लोगों के साथ थोड़ी ना लव होता है आपका। पर ये स्टेटस सिंबल है, मेरे पास 4 गर्लफ्रेंड्स है, मेरे पास 5 बॉयफ्रेंड्स है, अरे ये अभी पढ़ने की, तुम पढ़ोगे कब? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कम्युनिटी को समझनी है कि अगर ये हो रही हैं, तो हमें चाइल्ड को समझाना है, हार्मोनल चेंजेस के बारे समझाना है, ये क्यों हो रहा है, और फिर इससे डिस्ट्रैक्शन लेने के लिए, ठीक है, डोपामिन जो है वो बहुत, वही एडिक्शन, एंड में डोपामिन ही है सब कुछ, तो पॉजिटिव चीजों से क्यों नहीं लेते आप डोपामिन?
क्यों आपको डोपामिन चाहिए आपके मोबाइल से, क्यों आपको डोपामिन चाहिए आपके रिलेशनशिप से, क्यों नहीं जाके आप डोपामिन ले लेते अपने गुड फूड से, क्यों नहीं डोपामिन ले लेते आप एक्सरसाइज से। तो मतलब these are the causes, and I mean the community has to get involved, and issues जहाँ तक गवर्नमेंट के हैं तो फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में 16 इयर्स तक मोबाइल नहीं सेल के से कम बच्चों को मोबाइल सेल नहीं हो। सो कीप अ चेक, वी हैव टू कीप अ चेक। अब हम सारा तो बंद नहीं कर सकते है ना, बिकॉज जिन इसके देखो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम किसी चीज को बिल्कुल ही बैन नहीं कर सकते हैं, पर हम उस चीज को कब किसके हाथ में कितनी देर देनी है वो तो हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं, और कुछ चीजें जो गवर्नमेंट को करनी है वो करनी है। मेंटल हेल्थ बजट बढ़ाना है भाई। मतलब अगर हमारे पर लाख इस पर WHO हमें 1 लाख पे एक साइकेट्रिस्ट चाहिए, तो हम 0.75 और पूरी मेंटल टीम की यही हालत है। तो जब हम एक पब्लिक हेल्थ इशू हो गया है सुसाइड प्रिवेंशन, तो अगर हमें पूरी कम्युनिटी हेल्प चाहिए तो आप ही तो हैं हमारे कान मुंह आंख मुंह, तो आप ही के तो जो बातचीत कर रही है जा रही है आपसे, जो आपको समझाया जा रहा है, इसीलिए कि आगे इस पे जाके आप पॉजिटिवली काम करें। और आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं इस पे, यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट, सो मच गेट कीपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स एंड ऑल आर देयर, सारा कुछ चल रहा है। बट आपको शायद पता भी तो होना चाहिए कि ये चल रहा है, ये सब हो रहा है, तभी तो शायद आप यू मे बी एनकरेज्ड कि मैं ये सब कर लूं या जानकारी लूं। फिर हमारे हेल्पलाइंस आ गई हैं, तो आई जस्ट रीड। नेशनल हेल्पलाइन सुसाइड की 14416 है, टोल फ्री नंबर है ये। हर टेलीमानस जो है, तो हर स्टेट की देर आर हेल्पलाइंस नियर यू। अपने स्टेट की जहाँ आप रहते हैं वहां की पास की हेल्पलाइन नंबर जो है आपके पास हमेशा होनी चाहिए, एटलीस्ट पेरेंट्स के पास। क्राइसिस की सिचुएशन अगर आपको हैंडल करनी नहीं आती, तो यहाँ ट्रेंड बंदे बंदे जो ट्रेंड है वो बैठते हैं। तो वो समय अगर रात के 2 बजे 3 बजे आ गया, तो फिर आप एटलीस्ट हेल्पलाइन का सहारा तो ले सकते हैं। अगर आपसे हॉस्पिटल दूर है, डॉक्टर दूर है, साइकेट्रिस्ट दूर है, तो अपने स्टेट का हर स्कूल में these numbers, they should be क्या कहते हैं मैम, there are many NGOs, and there are many NGOs who are recognized by the government to give the training, and many अब सारों के तो मुझे नहीं याद ऐसे नाम, but there are many government institutes also which affiliated to government which are training। आप सिर्फ गूगल करिए और आपको सब मिल जाएगा। तो और अगर गूगल का भी and टाइम नहीं मिलता ना, तो आप मैम, मतलब हम लोग इसीलिए इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आज जोक्स तो शेयर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी रेलेवेंसी कितनी है। प्लस आज आप मान लीजिए, आज आप ये सुन के जा रहे हैं, आप में से शायद मुश्किल से कोई 1 या 2 इंसान होगा जो इस पे एक वीडियो बना के सोचेगा, ओके फाइन, मैं पोस्ट करूं कि आज मैंने किया और मुझे ये चीज समझ में आई, और बच्चों आपको नहीं करना चाहिए, या पेरेंट्स आपको नहीं करना चाहिए। तो हम ये इनिशिएटिव हम सोचते हैं कोई दूसरा कर ले, क्यों दूसरा कर ले। आज अगर मैंने कुछ सुना है, मुझे कुछ अच्छा समझ में आया, या चलिए हरवंदन मैम ने बोला कि हेल्पलाइन, नेशनल हेल्पलाइन नंबर ये है, ठीक है, हम क्यों नहीं उसको एक छोटू सा वीडियो क्लिप बना के उसको पोस्ट कर सकते। चलिए आपके पास पर्सनल नहीं है, आप वीडियो बना के हमें शेयर कीजिए, हम हमारे पेजेस पे इसको प्रमोट करेंगे। तो फिर वही सेम पेज का लिंक आप अपने बच्चों में प्रमोट कीजिए। तो इस तरीके से इतना सा आपका एक सेंटेंस भी किसी की रक्षा कर सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि जो चीज मुझे आती है, मैं क्यों नहीं उसको कुछ ना कुछ दुनिया तक पहुंचाऊं। कहीं हमारा हेजिटेशन हमें रोक देता है, कहीं हमारे ईगो हमें रोक देते हैं, और कहीं हमारी सोच हमें रोक देती है ये कह के कि मेरे एक के करने से क्या होगा, बड़े 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 डॉक्टर्स पढ़े हैं ना, वो कर लेंगे। क्यों नहीं मैं एज अ टीचर कर सकती, क्यों नहीं मैं एज अ काउंसलर कर सकती, क्यों नहीं मैं एज अ मदर कर सकती। क्या पता मेरा वो एक लिंक, मेरा एक शब्द जो बोला है, या एक सेंटेंस मैंने जो बोला है, उसको दुनिया सर्कुलेट करने लग जाए और इफेक्टिव हो जाए। यू नेवर नो कौन सी बात किसको हिट कर जाए। तो इस पे प्लीज इनिशिएटिव लीजिए, ताकि इन चीजों को सच में हम एफर्ट के साथ में दुनिया की मेंटल हेल्थ पे काम कर सके, क्योंकि इट्स नीड ऑफ द आवर।
जा रहे हैं बच्चे, हमारे हाथों से निकल रहे हैं। बच्चे ही नहीं, कितने लोगों को हार्ट अटैक बैठे बैठे आ जाते हैं, और यंग को ज्यादा आ रहे हैं। बड़े लोग तो 75 साल 80 साल में जाते हैं, यंग लोग तो फटाफट साफ हो रहे हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, लेकिन सच में बैठे बैठे, क्यों? क्योंकि उनके प्रेशर में चल रहा होता है, कब एक्सीडेंट हो जाते हैं पता नहीं चलता, कब वो वॉशरूम्स में होते हैं तो चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो क्यों नहीं हम हमारी कम्युनिटी में इस चीजों को सर्कुलेट करें? और उसके लिए सच में अभी जिया मैम भी हमारे साथ में माइंडफुल कोचिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं, वो भी साइकेट्रिस्ट हैं। तो वी आर रेडी टू स्टार्ट वर्किंग, लेकिन उसके लिए हमें हमारे को पहले ट्रेन करना पड़ेगा कि एटलीस्ट मैं ट्रेन हो जाऊं, तो मैं, हो सकता है मैं एक इंसान की जिंदगी संवार सकूं। एक का भी कर लिया तो हमारा तो जीवन सफल हो गया ना। यस मैम। बस मैम, आई थिंक बात करने का तो बहुत है, बहुत एटलीस्ट मेन नहीं, थिंग्स विल आई हैव कंटिन्यू मैम, टच्ड, है इस ना मैम? टॉपिक पे सच तो में अब चर्चा होनी है। हम लोग पैनल मैम डिस्कशन भी करेंगे मैम इस ठीक है, चीज पे। वेरी जो भी नाइस। इंटरेस्टेड हो पैनल में भी आप लोग बैठ सकते हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली, जिसके दिमाग में जो चीजें हैं वो एटलीस्ट डिस्कस करें। क्योंकि एक होता है सेशन और एक होता है पैनल। वी कैन डिस्कस ऑन पैनल ऑल्सो, बट वी नीड टू यस, टेक इनिशिएटिव। ये मुझे करना है, खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए। और जब हम खुद पे चले, खुद के लिए भी करेंगे, खुद पे वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ तो मिरेकल कर ही सकते हैं ना। सोच तो लाइए। यस मालविका मैम। Yes, good evening, madam, and गुड good इवनिंग। evening, all of you present here. Thank you so much, Harvandan ma'am and Rekha ma'am, for giving me the opportunity in your platform. So today the topic is a very sensitive one: suicide prevention for youngsters. So why we are mentioning this thing, especially for the youngsters? Can anyone tell why these youngsters? Because the data shows that right from the age of 12 and to 29, the maximum rate of suicides, isn't it? So it can be easily understood that this is the grim situation, and all the parents and teachers who are present, we need to understand the sensitivity, and especially in the present day time when our children are exposed to entire world, what is happening around the globe, and psychologically, children are more attracted to the negative things to the positive. Through internet, we can learn everything. I also learned everything from internet. The same internet usage, it has been surveyed by Google. I just surprised, around 80% Google usage and the surfing is being made in pornography. This is such a shocking thing. Now, if children are, and who, it is not for the youngsters only, for the adult people, middle adult, late adult, how shocking. What we are doing? Does it mean that we don't have any other work? But we are not understanding what can we do. बस वर्क प्लेस में जाना है, काम खत्म करके घर पे आके से ढूंढना है कहाँ से थोड़ा खुशी मिले। लेकिन ये जो जिंदगी है बनाया गया है, खुशी कुछ चीजों से नहीं आएगा, कुछ सामान से नहीं आएगा। जो अगर ऑथेंटिक हैप्पीनेस का बात करें, खुशी हमारा काम पे आएगा। अगर हम सही काम कर रहे, खुशी ऐसा ही आएगा। अभी क्वेश्चन है क्या काम? कुछ भी काम, कुछ भी छोटा भी जो काम कर रहे, क्या काम कर रहे वो देखना है। अभी इधर एक पेरेंट ने लिखा है, जैसे नीट जेई का, हाँ कोटा में बहुत, not only Kota, this LN institutes are there everywhere around this the country. So the thing is that what I have observed very closely, because my daughter is also at 18 and a half years, so I understand these things. Now, you see what happens now. This is a lie, because I understand by this thing, and it worked for my child, for me also, and that is why I am sharing it. It is a lie. Life has its own tendency. Life has its own tendency to grow, to blossom. If you see any life, be it a flower, be it a
vegetable, or any animal. It's a tendency to grow and to live, to survive, not to end life. So when a human being, the greatest creation of this planet, is ending their life, does it mean that their love to end? No, nobody wants to end their life, because everybody wants to survive, survive and survive. And for human being, it is not for the survival. We need to thrive. But why it is not happening? Somewhere there is a misconception. Now, let us understand that in a very easy way, this JEE and NEET and all these things, the pressures are coming. Yes, pressures are there. Now it's a life. Life has own intelligence. Fantastic and the super fantastic intelligence is there. Everybody, who is an adult or a very young child, they have the own intelligence. Our task, be parents especially and teachers, to link with the intelligence of those children. They understand what to do, what not to do. Now, when parents try to make it that life is like a living, you need to become a doctor, you need to become an engineer or CA or whatever, because it's the social status, it's the economic status. Actually, you are missing entirety with the life. Life is not about living. Life is not about earning. Yes, earning is important. That will be anyway happen if we try to connect them with their own intelligence, because we think our parents that they are 25 years younger than us. We came in this planet 25 or 30 years more than them, and we know so much of things, and we try to impose many things on them. It is not like this. They also know many things, even their children. No need to superimpose things. You have to do like this. You need to become like this, because many a times, as ma'am also told, हमारा विश था डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या जो भी, हमारा नहीं हो पाया. अभी हम पिक्चराइज कर रहे हैं बच्चा को बनना ही बनना है. अभी वो बच्चा का मन है या नहीं है, मोर ओवर स्किल है या नहीं है, पोटेंशियल है या नहीं है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ. वो डॉक्टर बनने का पोटेंशियल नहीं भी हो सकता है, उसका दूसरा कुछ बनने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. एक फाइन आर्टिस्ट बनने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. हमको क्या लग रहा है, अरे ये क्या फाइन आर्ट, उसका जिंदगी तो जाएगा. और सोसाइटी में हम क्या बोलेंगे, हमारा तो सारे रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं, ऑल आर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, हमारा तो मुंह ऐसा ही काला कर देगा. These are the very, very wrong things parents are trying to impose. ये अगर किया पहले से, इसमें सैलरी पैकेज कितना आता है. आई एम जस्ट शॉक दैट nowadays in schools also teachers are also telling that उसमें ये पढ़ाई किया तो उसमें सैलरी पैकेज इतना है. बट व्हाट आई फील, सैलरी पैकेज के बारे में पहले नहीं बताना है. पेरेंट्स से या टीचर से वो देखना है बच्चा का स्किल कहाँ है, बच्चा का इंटरेस्ट कहाँ है, और बच्चों का क्या चाहते हैं. अगर, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा एंड इट वर्क्स, क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर इंटरेस्ट. सी, गूगल में आजकल सब कुछ अवेलेबल है. क्या करना चाहते हो, तुम्हारा पास टैलेंट है, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम बताओ आप क्या करना चाहते हो. डॉक्टर बनना चाहते हो, इट्स गुड. And then when my daughter also one day she told, then I said, why do you want to be a doctor? Do you have that immense of urge, or not urge, not the planning, or to serve people like this by treatment and all that, then you go. Otherwise, the huge burden that will come, and if the skills are not there, competition is on the peak, children will suffer. Now we are pushing them. How much we can push them? There is a limit. And ma'am also told this is this 7 to 8 hours, minimum of 6 to 7 to sona hai, because this is a revival period.
अगर ब्रेन काम करना है, रिवाइज का करना है, जो भी इंस्टीट्यूट बोले बोलने दीजिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन कीजिए। मेरा बच्चा का अगर कम मार्क्स भी मिला तो भी चलेगा, लेकिन इतना टाइम सोएगा ही सोएगा। मेरा हेल्थ का एक्सचेंज में हम कुछ नहीं चाहते हैं। हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज। अगर बच्चों को अंदर इतना इच्छा आपने जागृत कर लिया, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि अल्टीमेटली वेदर इट इज अ डॉक्टर एज एन इंजीनियर, अल्टीमेटली वी नीड टू वर्क। जब ये वर्क प्लेस में हम जाएंगे, लेट द चाइल्ड विजुअलाइज हम ऐसे काम कर रहे हैं और हमको बहुत खुशी मिल रहा है काम करते हुए। काम भी कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, वो साथ में पैसा भी आ रहा है। हाँ, वो भी जरूरी है। काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, और वी आर जस्ट एंजॉइंग आवर वर्क, एंजॉइंग आवर प्रोफेशन। उतना अगर बच्चा का अंदर बैठ गया ना, तो बच्चा को एक बार धक्का मारने का भी जरूरत नहीं है, तू पढ़, तू कर, वो कर लेगा। Because I have seen just this year my daughter passed her 12th standard science. Just one day prior her chemistry exam, and only one day gap was there. She had fever, 101 fever. But मुझे करना है। मैंने बोला रेस्ट करो, परीक्षा बाद में देखा जाएगा, although it was a final exam. But she was unable to take rest. तो मुझे करना है मम्मी, मुझे रिवाइज करना है। But ultimately she did it and she got good marks as well. The thing is this, ये आपका इच्छा अगर नहीं थोपा, आपने अगर उनका जो इच्छा है उसका समझा और उसको रेस्पेक्ट करना सिखाया, जो ये तुम्हारा इच्छा है, ये अगर इच्छा पूरा नहीं हुआ, say after 5 to 7 years you will be a certain position, in which position you want to see yourself, तो बच्चा खुद ही बोलेगा, वो बोलने का जरूरत नहीं है जो तुमको ये बनना है, बच्चा खुद ही, क्योंकि उतना इंटेलिजेंट सबका अंदर है। Our task is to connect to their original intelligence, और उसके लिए हमारा पेरेंट्स का, टीचर्स का स्ट्रेस फ्री होके देखना है बच्चा क्या चाहते हैं। बच्चा जब परेशानी में है, वो परेशानी को हम कैसे सपोर्ट करते। As we come to the suicide prevention, it is not that अचानक एक दिन बच्चा ने सुसाइड कर लिया, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन इतना दिन वो घर पे पेरेंट्स ने कैसे नहीं देखा, क्योंकि वो आंख ही नहीं है देखने का, बिकॉज ऑल आर बिजी। कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी कनेक्टिविटी। जैसे कनेक्टिविटी हुआ, बच्चा तुमने होमवर्क किया, खाना खाया, लेकिन वो खाना जो फूड, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल फूड, उसका ठीक से मिल रहा है या नहीं, वो कहाँ ब्लॉकेज है। और स्पेशली मैम ने भी बार बार बोला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने मेरा बेटी को भी बोला, इवन इट इज पासवर्ड इट शुड बी ओपन टू मी। क्या चेकिंग हो रहा है मोबाइल में, यू शुड नो, बिकॉज वन डे इट शुड नॉट बी लाइक दिस दैट ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था। दूसरा एक चीज है, इफ यू रियली सी द चाइल्ड, देयर फेस, देयर मूवमेंट, देयर एवरी एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मॉर्निंग, बिकॉज ये जो एडोलेसेंट पीरियड है, एडोलेसेंट पीरियड में इन लोगों का नॉट ओनली हार्मोनल चेंजेस, एज साइंस सेज, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंजेस इज हैपनिंग इन द ब्रेन. Brain is restructuring and it will continue to restructure up to 25-24 years. तो ये 24 years में बहुत सारे चेंजेस। yes पूर्णिमा जी, we should not ignore even a silliest thing. If we think that अरे क्या बात कर रहे हैं, नहीं, उसका सम्मान करना ही चाहिए। बच्चा बात तो करे, अगर बच्चा ने कभी आपको समझ में आया वो झूठ बोल रहा है तो आएगा, लेकिन उसको डांटना नहीं है, बाद में बोलना है, अच्छा ये जो बोला, अगर झूठ बोला और आपने इतना डांट दिया तो बच्चा कंटिन्यूअसली झूठी बोलेगा, कभी सच बोल ही नहीं पाएगा। ये रीजन एक है, क्योंकि आपने जो बैरियर क्रिएट कर दिया, वो बैरियर नहीं होना चाहिए। एज ए पेरेंट और ए टीचर इवन यू शुड डिसमेंटल दैट बैरियर। कुछ भी हो जाए, बच्चा बात तो करे, आके प्रॉब्लम जो भी है बात करे,
बताया कि जो मेरा ये हो रहा है, क्योंकि मैडम ने बहुत अच्छा से बताया, जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, यस दिस इज लाइक दिस इज शेम, तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये एक शेम हो गया। तो बच्चा समझ रहे, अरे ये कैसा होता है, तो मेरा ऐसा है ऐसा है। तो बच्चा से अच्छा से बात करना है। अगर आपका लग रहा है जो डिफिकल्ट हो रहा है, प्रैक्टिशनर्स आर देयर, प्रोफेशनल हेल्प इज देयर, बट बच्चों के साथ आंख मिला के बात करना है, हार्ट को हार्ट, अपना हार्ट के साथ उसका हार्ट मिला के बात करे, क्योंकि रेजोनेट करना बहुत जरूरी हो। बच्चा कैसे ये उम्र में एडोलेसेंट कैसे उसका एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका रेस्टलेसनेस होगा, वो बहुत कुछ होता है, उसका एंगर इश्यूज रहता है, एक्सप्रेशन नहीं रहता है, अननेसेसरी इमोशनल बर्स्ट आउट होता है, वो होगा, ये टाइम पे ऐसा होगा। उसी टाइम में आपका आउटब्रस्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट दैट अच्छा ठीक है ऐसा कर रहा है करने दो, इसका अगर हमेशा आप देख रहे ऐसा आउटब्रस्ट हो रहा है, तो उसका बिहेवियर में कुछ तो चेंजेस है, बात करने के लिए कोशिश कीजिए प्यार से। इवन इफ द टीचर्स, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका बिहेवियर बहुत कुछ चेंजेस आता ही आता है, क्योंकि एक दिन में सुसाइड किसी का नहीं होता है। द थिंग इज दिस, इट इज अननोटिस्ड। सो वो जो आंख देखना, एक को देखना का जो आंख है, उसको डेवलप करना है। किसको? कम्युनिटी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। जहां प्रॉब्लम लग रहा है, यू शुड टेक द प्रोफेशनल हेल्प। और जिससे भी बात करके आपको लग रहा है कुछ मिलेगा, लेकिन करना ही करना है। मैं जिधर ओपीडी में जाती हूँ, तो बोल रहे थे एक बच्चा सुसाइड करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन तो बोल रहे नहीं नहीं, देन शी टोल्ड हमारा साइकोलॉजिस्ट आते, देन उन्होंने वो बाहर मतलब सब लोग जानेंगे। नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड, वो बच्चा का जिंदगी से बढ़कर है सोसाइटी का स्टिग्मा। ये एक बहुत बड़ा चीज है, सोसाइटी क्या बोलेंगे। हाँ? और एक जन बोला, जब बच्चा बहुत चिल्लाता है, तो हम तो पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं, और बाकी हाँ दरवाजा बंद कीजिए, लेकिन बच्चों का जो चिल्लाना जो है उसको एड्रेस करना ही करना है। चिल्लाने का डर के मारे से या स्टिग्मा के मारे से उसका चिल्ला रहा है क्यों? इफ अ बच्चा इज शाउटिंग, that means there is certain emotion behind this. We need to find out not the behavior, the emotion behind the behavior. This is very very important. वो इमोशन को पकड़ना है और इमोशन के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। किसको? केयर गिवर को, द फर्स्ट वन। एज ए पेरेंट दिस इज द फर्स्ट वन। सो आजकल पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बिकॉज वो पहले का जमाना में जो अभी ये जो एक वन जनरेशन ब्रेक गैप में बहुत, जैसे 100 years में भी इतना चेंजेस, एक तो है लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और दूसरा है टेक्नोलॉजी। इट इज एन इमेंस बैड इफेक्ट्स। डज इट मीन दैट वी शुड स्टॉप टेक्नोलॉजी? नो, वी शुड लर्न हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी से बहुत सारे स्ट्रेस भी आता है। हम ज्यादा सोच रहे क्या, हम स्ट्रेस एलिमिनेट कर रहे मोबाइल को देख के, सोशल मीडिया को देख के, नहीं, स्ट्रेस और भी बढ़ रहा है, क्योंकि लाइक्स उतना नहीं आया। हमने इतना अच्छा एक पोस्ट किया, फोटो लगाया, उसमें ज्यादा लाइक्स ही नहीं आया। अगर किसी ने उल्टा लाइक्स दे दिया तो गया। तो इतना जो स्ट्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट किसको करना है? not only for the adolescents, but also for the parents, for the teachers. So now I will make one guiding exercise so that you can learn how to reduce your Ma'am, stress in the daily basis. Yes, madam. ma'am, I'll Huh. just tell the red flag and high risk. Okay, okay, फिर sure, sure. then we can end in a peaceful way. Yes, So let them, everyone also go very yes, peacefully, yes, because yes. आपका mindfulness will actually relax everyone here so Yes, much. yes, of course, madam. It's And good that. And before that, now, before I start with these things, if any questions, we will address the question first, and then I will go to this practice.
Okay, madam. Yes, please continue with the red flags. तो अभी हमने कॉजेस पे काफी डिस्कस हो गया है। अभी वो जो साइंस क्या है, जो मैम आपको कह रही हैं कि पता नहीं चला है, जो आपको वो साइंस भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो हाई रिस्क है जो बच्चा ने एक बार भी कर लिया है, जिसका फैमिली हिस्ट्री भी है ऐसे काम का, जिसको डिप्रेशन है, फिर बिहेवियर, सडन बिहेवियर चेंज। तो एक बच्चा अकेला रहने लग गया है और वो चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो गई है, और ये वाले चेंज, और सडनली ऐसा बच्चा एकदम बहुत खुश हो जाए, तो ये मत सोचना कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, क्योंकि उसने अपने प्रॉब्लम का शायद एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया, जो कि प्रॉब्लम टेम्पररी थी पर उसके लिए सॉल्यूशन। अब कोई भी ना, एक चीज हमें क्यों क्या समझनी है कि हम इतना कॉजेस पे क्यों हमने फोकस किया है, क्योंकि कोई सुसाइड में भी ना कोई मरना नहीं चाहता, वो करना क्या चाहता है कि वो पेन जो बेयर नहीं कर पा रहा ना, उस पेन से छुटकारा चाहता है। तो पहले तो बहुत इंडिकेशन देगा, हेल्प मांगेगा। तो प्लीज अगर आपको डाउट है ना तो पूछिए, क्योंकि पूछने से ना कोई आपके मात्र पूछने से सुसाइड नहीं करेगा। अगर मैं आपको पूछूं तो आप जाके करोगे क्या? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये बच्चा जिसकी तो पूरी जिंदगी आज उसके सामने पड़ी है, वो नहीं करेगा। हाँ, वो रिलैक्स हो सकता है, उसकी घबराहट, उसकी एम्बैरेसमेंट दूर हो सकती है कि आपने पूछा। तो रेड साइन जो है ना, जब बच्चा ऐसे बार बार बोलने लग जाए ना, कि इससे अच्छा तुम मर जाओ, मैं सुबह नहीं उठना चाहता, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, ऐसी बातें करने लग जाए बच्चा, या जैसे मैंने बोला है कि कई बच्चे नशे में पड़ जाते हैं और ज्यादा करने लग जाते हैं, या फिर ऐसी ड्राइविंग भी आजकल हमने देखा है, क्योंकि अब ऐसा जमाना आ गया है, जो बच्चे जिनको लाइसेंस भी नहीं है चला रहे हैं, और ऐसे चला रहे हैं कि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो या तो वो नशे की उसमें है, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ठाना तो जरूर हुआ है। और ये ऐसे होपलेस हो जाए ना कि अभी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे को पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं कुछ भी नहीं बन सकता हूँ, ये बच्चे की वे में होपलेसनेस है। मैं कुछ कर सकता ही नहीं मेरी जिंदगी में, ऐसे जब बोलने लग जाए ना एक बच्चा, और अपनी अच्छी प्यारी चीजें जो हाथ नहीं लगाने देगा ना किसको, बांटने लग जाए, तो वो ये रेड फ्लैग साइंस है। तो इस समय हम लोगों को आ, हाँ, they can drop chits, but if they can't talk directly, but the thing is कि स्कूल काउंसलर होता है, तो प्लीज एक तो स्कूल में मैंडेटरी है, और काउंसलर को प्लीज काउंसलर जैसे यूज करिए, नॉट एज एनीवन फॉर एब्सेंटी, एंड मेक इट नॉर्मलाइज इट कि सब बच्चे जाएंगे बारी बारी और दे विल टॉक टू द काउंसलर। तो जब कोई बच्चा जरूरत से जाएगा ना, तो वो भी एक नॉर्मल थिंग लगेगी। तो ये नहीं तो ऐसा हो जाता है कि काउंसलर के पास जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो है उधर, तो वो एक तो वो अपना काम ही नहीं कर रहा है, ना उसको जो लेक्चर देने चाहिए जो बच्चे को समझाने को, तो ना उसकी, क्योंकि वो स्पेयर व्हील है, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो टीचर नहीं है उसके लिए काउंसलर यूज कर रहा है, तो बच्चों को उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको उसका काम करने दो, क्योंकि वो सरकार ने तो आपको एटलीस्ट वो तो दिया है। तो फिर उसका नॉर्मल लेक्चर लेने दो, और बच्चों से नॉर्मल बॉन्डिंग होने दो। आज इतने बच्चों को भेज दो, आज उतने बच्चों को भेज दो, नॉर्मलाइज, एक काउंसलर के पास जाना, स्कूल काउंसलर से ही आप नॉर्मलाइज करने लग जाएंगे ना ये चीजें, तो इट विल हेल्प अ लॉट। तो अब आई तो जस्ट वांट टू एंड विद अ सेंटेंस कि अब आंकड़े तो आपके सामने, एवरीथिंग। यस, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, उस घर से बोल के जाता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल पहुंचता नहीं है, ना कम्युनिकेशन गैप होता है, ना टीचर पेरेंट्स को बताते हैं, ना पेरेंट्स को पता चलता है। और जब कोई बच्चा लंबे समय तक नहीं आए, प्लीज आस्क, रिंग द पेरेंट्स। वो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो और कहीं गलत संगत में पड़ा हो, नशा कर रहा हो, और फिर उसके बाद कई कई चीजों में फंस जाए वो, फिर उसको ये कार्य करने पड़े। नहीं जाते बच्चे, उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, उनको उसकी भी शेम होती है कि मैं उतना अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं।
तो अब मेंटल हेल्थ इशू से अब हम पब्लिक हेल्थ इशू पे आ गए हैं, तो अब सुसाइड प्रिवेंशन बिकम्स एवरीवन्स बिजनेस, नॉट ओनली द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। इसकी जानकारी जितने प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं ना, प्लीज जाओ ले, क्योंकि कोई ना कोई तो कुछ बताएगा ही अपने एक्सपीरियंस से अलग, और जितनी बार यू विल लिसन यू विल रिटेन मोर। तो अभी माइंडफुलनेस आल्सो इज अ वेरी वंडरफुल टूल, जिसके बारे में मैडम विल टेल एंड मेक अस ऑल प्रैक्टिस। एंड यस, अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क एनीवन, डायरेक्ट टुवर्ड्स एनीवन। Excuse me, ma'am. Ma'am, can you hear me? Yeah, we can hear, but which person you want to ask, please tell. Ma'am, actually, I wanted to know much more about your organization and what you people deal in. Just is it only for suicide prevention or anything other? Yeah. तो ये तो तब रेखा मैम बताएंगी। हाँ। वी आर पार्ट Ma'am, ऑफ द actually- ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्लीज मैम आप बताइए। Yeah, Anjali ma'am, good evening. Actually, we are working for like we have taken it as an initiative wherein we are working for the mental health also. For that, we are coming up with a program, mindfulness. Fine. It will start any day of the hour. Suppose Harvandan ma'am is free because they are all psychologists. So we have Right. come up with a program wherein we can train teachers, we can Mm. train the youth, we can train the students also. Fine. Because isolation has become a mystery these days. Why they Yeah. want to remain isolated? What is the reason behind? So we'll be coming up with 1 hour program. It could be half an hour depending upon the availability of the coaches. Because first, we'll be coming up with the volunteer programs. All those who want to join us, all those who want to give their services, yes, of course, they can offer. Again, we are coming up with many of the skill courses also. So if you want to know about the organization, 25th, we are having a meeting. We are into the process of appointing the coordinators also. बहुत सारे cities से coordinators भी आए हैं. Registration fee की अगर बात करें, it is only ₹70 annually. Earlier it was quarterly, but what I felt is I'm not here to earn. And the people who are connecting with me, they also believe that they now want to work for the social cause. Right. क्योंकि सिर्फ वही चीज है मैम, अगर एक भी जीवन बचा लिया तो शायद भगवान जी ने हमें यहाँ जिस लिए भेजा है, वी कैन सॉल्व द पर्पस. Yes, of course, if somebody wants a personal training, then we will provide them because we'll be giving personal time. Then it is up to their doctors only how they are going to deal with. But it would be into the notice of the organization that how we are going to proceed with the patient, because they are all, Harvandan ma'am has recently completed POSH training. Yes, ma'am, right? Yes. So Even again, it's becoming major issue these days. People don't know how to behave. So Right. behavioral causes, as ma'am said, Malavika ma'am, don't tag a child that you Of are a course, bad boy or a bad girl. So Yes, these ma'am. minor things will be coming up with the issues. We want people to come up with the ideas. हो सकता है Anjali ma'am would be expert in some of the other thing. Rakhi ma'am would be Dr. Ramesh, sir, you Yeah, want good to ask? ma'am. Sir, Yeah, you want yes, to ask ma'am. anything? Yeah, sir. Hello, everyone. Good evening, ma'am. Dr. Ramesh from Pune. I just want to ask, rather, I would like to suggest, if I get the chance for the teachers, I have a very good program that is, counseling. A teacher as a counselor, that on which I'm working since last 4 or 5 years. So whenever you find the right time, that time, please just tell me about that. I'm ready to conduct 1 hour session on this. So our counselors as well as the newcomers, basically who are in the teaching field, also get the idea what exactly and how to deal with the children, not only in the classroom, even though they are coming to them for counseling. Thank you, ma'am. thank you so much, because there were suddenly I just logged. Good evening, ma'am.
Yes. Good evening. Yes, very good. Mrs. Sham Chawla, this side. Yes. I'm working as a career counselor, and really, it is a great initiative taken by you people. Because, of course, we are talking about the teachers, we are talking about the children. But in 90% of the cases, when the child comes to me, I feel the child is very clear, but the parents are the one who create confusions and problems for the child. So I wish that some counseling sessions for the parents, particularly the students of classes 9, 10th, and 11th, 12th, which are very, very crucial, may be organized, and I am ready to offer my services for that. And one more thing I would like to mention here, as I talked about making small videos. What happens, ma'am? Sometimes, like as you can see, people are quite occupied with their daily routine. They forget. So many are there, hundreds of people who have joined this group, but they forget. Later on, they text, "Oh my God, I skipped." And it is not their fault, or they intentionally are skipping the meetings. No, it is not like that. It's only because they're actually occupied somewhere else. So, what we can do is, as you are connecting with us as the members, or you want to come up with the coordinators, if you want to create your own team, you're most welcome. We'll have a meeting later regarding this. But how we can take the initiative is making small bites. Fine, small videos of 2 minutes. We'll be posting. I am having connections with many news channels also. So we can, your small bites could be played. It could be played on your channels. Like suppose Harvandan ma'am made, you can play it on your channel. Sonia ma'am made, or Malavika ma'am made, Neeta ma'am made, Vinod sir, or Shailendra sir, Ramesh sir, Anjali ma'am, Jia ma'am. Anybody can make it. Fine. So what we can do, we need to promote one another. It's like, okay, being selfish won't help. It will never help. If we are asking somebody to follow us, we should follow back. And suppose we are busy, we should not feel shame. Okay, fine, we are expecting somebody to follow us. No. If the content we are making, everybody can help. Why? Because we are not helping ourselves. We are helping the community. Small 1 minute videos, small 2 minute. Maybe you are, I am taking the workshops. I told last time also when we had a meeting, Hemlata ma'am wants to say something. Ma'am, just let me finish up, then you can of course continue. So that time, thousands of people from different schools, they connected. And we were having around 28 people out of India also we were having, who trained our people free of cost. They didn't charge anything. But the result was, at least they were showing enthusiasm, and they came next year also, ma'am, we want to learn this. And they were ready to pay. If something is worth, they are ready to pay. If we are giving them personal training, they are ready to pay. But we should be actually, we should not lose hope. We should not leave helping society. Maybe somebody is there, like Harvandan ma'am, I've seen Malavika ma'am, I've not been in contact, like recently she has joined us. But yes, ma'am is with us since 2 years. And she has been giving us volunteer services. And when we promote now, it happens that people come in contact, and you never know who needs your support. Excel, ma'am was just now, she was struggling. I won't use the word, but yes, she was like trying to locate where she can make co-host. So these platforms give us the opportunity to learn. Maybe Sham ma'am knows something and I don't know. I'm not computer savvy. I don't know technical things, but you people can help me. So these discussions, and if we are discussing, we can fix one date, ki ma'am, we are comfortable this day, and we can come up with the solutions. Everywhere, if we are supporting, we can promote what is our vision. Because Anjali ma'am asked what organization is doing, organization is giving platform to everybody, whosoever wants to come up with his or her vision. If you have a vision, you come, we will actually motivate people to promote you all. Yes, Hemlata ma'am, you wanted to say something? Hello. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening. So, yeah. So, I just wanted to say about this contribution. No, we can run a program like psychological first aid. During COVID and post COVID, I was running this program. I was along with the doctors. This program for CBSE teachers. This was done by CBSE, and I was one of the facilitator there.
So we had 4 modules out there, and there were teachers from all over the country who were joining us. This was done by CBSE free of cost for all the school teachers. Even So CBSE, psychological first aid is something we need. That will not make them counselors, but they can always, reach out. They can always support. They can, refer that person. So we can do that. And I've got the module ready with me. okay. If you ever Then want, we can definitely the start next with this session, program. next session you would be taking, ma'am. Come up with the session. We are ready to go ahead. Yes, we can do that. Definitely. Yes, ma'am. All right. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am. Anyone else? Ramesh sir, you need to counsel our students because I'm connected to a school. I'm working in a school and into this teaching profession since 26 years. So I would be definitely Great, requiring great. in support so that our children who are not able to crack NEET, I still remember 3 years back. One child, night 2:35, she texted me. She started, "Hello, ma'am, are you awake?" 2:35 a.m. She texted me, "Hello, ma'am, you are awake." I had slept that time. But when I woke up in the morning, the message was continuously coming till 3:55. Till 3:55. And the child was Oh, asking me the question. She has written a long love letter, I would say, because it was for me. Ki, ma'am, you always okay. said, Ki, Betu, what you want to become. And I told you that I have a dream of having that white coat. But now I feel, in spite of going to the coaching center, I feel I cannot do anything. NEET मेरा crack नहीं हुआ. अब क्या करूं, ma'am? And she was telling me everything what we discussed in the class as a mentor, as a teacher, as a counselor. I used to discuss. And she was writing the entire letter कि बेटा अपनी lines बनाओ. You should not be dependent on one. Now she is successfully in DU. She has completed her BSc. But it's like 2 3 years, I don't exactly remember, but I like when I read that letter na, it was WhatsApp message, but I found it a love letter for me कि मैम आप सही कहते थे, बट अब क्या करूं. उस बच्चे के लिए हमारे काउंसलर थे मनीष सर, उनके लिए उस बच्ची के लिए स्पेशली मैंने काउंसलिंग सेशन रखवाया था. एंड देन शी गॉट कि नीट नहीं हुआ तो बायो का स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है. एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी. लेकिन वो कहती है मैम मेरा व्हाइट कोट सपना था. मैंने कहा बेटा व्हाइट कोट तो कोई भी और दूसरा प्रोफेशन भी ढूंढ तो सकते हैं हम लोग, पहन सकते हैं, क्यों नहीं कर Correct. सकते. तो Yes. चिल्ड्रन रियली नीड अस सर, रियली. Yes, yes, definitely, ma'am. You are absolutely right. Okay, fine. So anybody else? Otherwise, ma'am Malavika ma'am, you can continue with your exercise. And for 1 minute, I would request you all to kindly turn on the camera so that we can click a photograph of you and capture the beautiful smiles. People are busy. Hemlata ma'am, are you busy? Jyoti ma'am, Neeta ma'am, Shailendra sir, Shams ma'am, you were there entire time with the camera on. Please, if it is possible. Jaya ma'am, just. At least we should know कि हमें सुन कौन रहा है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना मैम. हरवंदन मैम, मालविका में हमें मोटिवेशन मिलता है Yes, कि yes, चलो लोग yes. हमें सुन रहे हैं, इनिशिएटिव लिया है तो कुछ तो आगे बढ़े. I'm actually out. Oh, okay, नो okay, प्रॉब्लम okay, मैम. okay. आउट अगर वॉक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी वी अटेंड द मीटिंग Yes, ma'am. करते करते कोई प्रॉब्लम नहीं. आप जब बात कर रहे थे मैं समझ गई, या तो आप रनिंग कर रहे हो वॉक कर रहे हो, पर ये भी तो मोटिवेशन है मैम कि देखो काम में बिजी होने के Yes, बावजूद भी हम yes. टाइम निकाल सकते हैं अगर हमें अच्छा लगा, हम चाहते हैं तो ये एक तरह रेखा से मैम, मोटिवेशन है. रेखा मैम Yes, yes, एंड absolutely. डॉक्टर साहब, यस जया मैम. मैं आपको बहुत शिद्दत के साथ with lot of concentration with my heart and soul I've been listening to every educator out here. First of all, congratulations for taking up such a challenging topic. And I believe you addressed, आपने सारे issues को बहुत अच्छे से address किया है. And एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी, लाइक हम नीट और मेडिकल और साइंस के स्ट्रीम को ही ना देखें. अगर देखें तो आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर द लास्ट 30 years almost. And the observations that I have come across is that जो बच्चे हैं वो आज क्लैट के लिए भी उतना ही परेशान होते हैं.
क्लैट एंट्रेंस हो गई या आपकी निफ्ट हो गई या आपके किसी भी करियर को लेकर अगर बच्चा एक ही ट्रैक पे चलता है, जैसे आपने बार बार इस पॉइंट को हाईलाइट किया, एंड आई रियली लव द फ्रेज एंड आई एम गोइंग टू यूज इट इन माय वैल्यू एजुकेशन क्लास, व्हाट यू मेंशन दैट यू नो लाइन अब क्या होनी चाहिए. So this has really touched me, and I'm going to. This is going to be my takeaway from your session. Definitely, जो डॉक्टर साहब ने भी ब्रीफिंग दी और आपने भी दिया. तो I personally feel कि एक नीट को तो डेफिनेटली टैग कर दिया गया है कि आई मीन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई मीन वेरी रिसेंटली वी हर्ड अबाउट दिस सुसाइड बाय दिस यंग CA who was working in the corporate office. Right, very recently it was there in the newspaper. So it is, if you look at it, जो work ethic है वो भी change होना है. उससे पहले एक बहुत serious मुद्दा मैं आपसे आंसर चाहती हूँ इस पे कि अब now we are talking about, according to the new education system, question of having board exams from class 5, class 8, right? And I can see parents में already ये चीज trigger हो गई है. आज बच्चे, पहले हम जब our generation, I mean, I am much older than many of the young girls who are here, youngsters who are here. But हमारे टाइम में ये नहीं पूछा जाता था. Like even if we had stated that we got a 70%, oh my, मतलब first division itself was like आपको फूलों पे बिठा के parents घर लेके आते थे. And now the thing is that, और कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि इतने नंबर क्यों कटे. लेकिन अब जो पेरेंट PTMs में भी आते हैं, सबसे पहला उनका मुद्दा होता है कि इस क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें 2 क्यों मिले, फुल क्यों नहीं आए, राइट? एंड देन दे असेस द रिजल्ट एंड क्लिकिंग पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, एंड देन यू नो ट्यूटर्स को लेके आ जाएंगे कि कहाँ पे इसमें क्यों नहीं हुआ. सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो जाए, साइंस हो जाए, कोई भी, मतलब पॉलिटिकल साइंस हो जाए या सोशियोलॉजी हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट में, एंड getting this 100 on 100 from CBSE has been one of the challenge, because every child and every parent focuses only on that 100, that 100%. हमारे टाइम में ये it was unachievable. पर मुझे लगता है कि हम बहुत खुश generations थे, because अगर हमें 85 भी मिलता था हम खुश थे. So ma'am, with this kind of इवैल्यूएशन सिस्टम, जहां आप बोर्ड एग्जाम इतनी छोटी क्लासेस से ला रहे हैं, तो अब मैं देखती हूँ कि क्लास 3 में ही पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं कि 5th में बोर्ड है, 5th में बोर्ड है. अच्छा, 5th से बच्चा निकला, अभी उसको सांस भी नहीं आपने लेनी दी, 6th में आ गया तो फिर आपने बोला 8th में बोर्ड है, 8th में बोर्ड है. एंड 10th एंड 12th में तो जाहिर है लाइक इट्स अ टर्निंग पॉइंट. सो हाउ डू यू एड्रेस दिस इशू? आई मीन, आई वुड लाइक सम इनसाइट इनटू दिस. See, ma'am, सबसे पहले तो as I said that because you are having a question, fine. अब सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हमारे पेरेंट्स को ये चीज कैसे समझाएं कि 100 on 100 लाना is not the solution. My daughter, मैम, वो भी साइकोलॉजी, उसका एग्जाम से उसका एग्जाम अभी 12th बोर्ड था. She was the head girl of the school. अब आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, शी मेट विद एन इंजरी, आई इंजरी हो गई थी एग्जाम से 2 दिन पहले, बोर्ड के पेपर्स से 2 दिन पहले. आंखों में स्टेम चला गया तो वो शी कुड नॉट सी. उसको स्क्राइब दिया गया था लिखने के लिए, एंड कुछ बहुत हार्ड स्ट्रगल्स हुए. फिर टीचर ही आगे आई टू सेंड द वॉइस मैसेजेस. यहाँ पर हमारा रोल होता है कि हम पेरेंट को कैसे काउंसल करते हैं. उस टीचर ने जब वॉइस मैसेजेस भेजे बच्ची को कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, बिकॉज शी हैड ऑल्सो एक्सपेक्टेड 100. साइकोलॉजी उसके पास में है, 12th बोर्ड की बात बता रही हूँ, अभी दिस ईयर ओनली. द टीचर मेड मी अंडरस्टैंड वाया दैट मैसेजेस दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट शी हैज मेट विद द इंजरी, तो वो नहीं कर सकती. आपको अंदर कंसाइंस जगाना पड़ेगा. आप चाहे कितने भी पापड़ बेल दीजिए, अगर बच्चे के अंदर नहीं है तो वो नहीं करेगा. पेरेंट को समझाना पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मार्क्स क्राइटेरिया नहीं होते. बाकी सब्जेक्ट्स में शी कुड नॉट क्रॉस लाइक 95 उसका था मैम, 92 93 पे अटक गई. लेकिन साइकोलॉजी जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचर्स एफर्ट्स शी कुड स्कोर 99. उसका एम था 100 on 100. बट वही टीचर को जब इसने मैसेज किया कि मैम आई कुड नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन, तो टीचर ओनली टेक्स्टेड कि बेटा आई नो योर वर्थ, अभी तो तुझे बहुत आगे जाना है.
तो ये चीजें पेरेंट्स को समझनी होंगी, और इसके लिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1-1 मिनट का 2-2 मिनट का अगर हम वीडियो बनाएंगे ना मैम, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के हिट करेगी। कहते हैं ना, हैमर अगर बार बार करेंगे आप, तो वो हैमर जब बार बार, जब तक हथौड़ी नहीं चलेगी ना मैम, तब तक ये मार्क्स का क्राइटेरिया चलता रहेगा। मैं खुद मैम 42% से पास स्टूडेंट हूँ। मुझे मेरे 12th स्टैंडर्ड तक जो मेरे दोस्त जानते हैं, मुझे एक भी सेंटेंस इंग्लिश का नहीं आता था। आई कुड नॉट स्पीक। लेकिन आज मैं पीजीटी इंग्लिश हूँ, 26 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने 98 में स्टार्ट कर लिया था पढ़ाना। और मेरे को जब मैंने फर्स्ट जॉब किया, मैंने मैम से यही बोला कि मैम मुझे बस, मैं हार्ड वर्किंग तो हूँ, मेरे थोड़ा फाइनेंशियल, लाइक माय फादर वाज नॉट, हम बोलेंगे आई बिलोंग टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली। फाइन, बहुत बहुत कुछ नहीं था। एक बहन कपड़े पहनती थी, हम दूसरे, हम तक आते थे, 6 भाई बहन थे हम लोग। तो आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे नहीं थे हमारे पास में रिसोर्सेस, और मैं बहुत आलसी थी पढ़ाई के मामले में। तो मैं बच्चों को यही एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कोशिश तो करो। मेरे को 12th तक नहीं आता था एक भी शब्द इंग्लिश में बोलना। क्यों? क्योंकि दिमाग में यही था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, दिखने में सुंदर नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ है 4th क्लास से, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं आइसोलेटेड थी। तो दिमाग में ही फिट हो गया कि मैं नहीं कर सकती। अब मैं नहीं कर सकती, वो मेरे साथ जिंदगी भर चला। लेकिन सडनली जब मैंने जॉब के लिए 98 में मैंने सोचा खुद ने कि मुझे मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। 10th में आई वॉज 42% मेरा स्कोर किया मैंने रिटन एग्जाम में, एंड 12th में आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल। क्यों? क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया। एंड नाउ पीजीटी इंग्लिश है, इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। जिस इंसान को इंग्लिश का एक सेंटेंस नहीं आता था, जॉब पे वही टीचर थी, वही प्रिंसिपल थी जिनके साथ में मैंने सबसे पहले काम स्टार्ट किया। एंड शी सेड कि 2 शब्द बोल पा रही हो ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बोल लोगी। वो खुद हिंदी मीडियम से थी और वो स्कूल रन कर रही है। So it is not about CBSE. We cannot blame. First of all, we should make people understand. We should make ourselves understand. We should make our children understand. Blaming बंद कर दो। करना है तो अंदर से आना चाहिए। ये जेई, नीट, क्लैट, ये सारे मैम नहीं हुए ना, इसके अलावा भी आज ही हमने ओरिएंटेशन लिया, उसमें हमने इसके अलावा भी 150 प्रोफेशन हैं। अगर आप यहाँ फेल हो गए तो अपने आप को पहले तो ये कॉन्फिडेंस दो कि मैं, अगर यहाँ नहीं हुआ तो मेरे पास में 150 ऑप्शन और है। भरे पड़े मैम ऑप्शंस आज की तारीख में। इट्स लाइक, अभी आपने देखा होगा, अगर ग्राफ की भी बात करें तो मैम 33% कम हो गया आईआईटी जेई के प्लेसमेंट्स है ना। पहले वो 10 शायद 10 लाख से कम का लेते नहीं थे, अभी इन्होंने 4-5 लाख 6 लाख वाले भी कंपनीज को एंटर कर दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों का लेवल ही नहीं है मैम। अब वो कोविड ने सारा खत्म कर दिया है। अब वो कंपनीज भी आ रही है जो सिर्फ 6 लाख का पैकेज ऑफर करती है, आईआईटी मुंबई में मैम। तो फिर हम क्यों फोर्स कर रहे हैं बच्चों को? वाई? कि यही क्रैक करो? नहीं है, कोई बात नहीं। ये चीज पेरेंट्स के डालने के लिए मैम एवरी डे का हमारा हैमर चाहिए, जो हमारे, हो सकता है आप रिकॉर्ड करें 2 मिनट का, हो सकता है पूर्णिमा मैम करें, शैलेंद्र सर करें, कोई भी हम में से कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, और हर कोई अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करे। द मैसेज शुड बी फॉर द पेरेंट एवरी डे, या बच्चों के लिए। लेकिन हम करें तो सही, हम सिर्फ बात करते हैं, कहानी कहीं खत्म हो जाती है मैम। तो द थिंग इज कि बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। सो इफ वी कैन स्टार्ट दिस, सीबीएसई को भी मैम जगेगी नहीं वो तो यही लाएगी कि ओके 5th में बोर्ड लाना, ये लाना, थोड़ी देर 2 साल वो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसके बाद में जब फेल हो जाता है तो फिर नया कोई एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो ये तो लाइफ है मैम, इट कीप्स ऑन गोइंग। हम लोग तो हैप्पी थे, सीरियसली। हम सितोलिया भी खेलते थे और हम समीश में घूमते थे। हमारे बच्चों को तो जरा थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दो तो वो तो पता नहीं तूफान मच जाता है, बाहर जाते ही नहीं मैम हमारे बच्चे। माई डॉटर, शी डजंट वांट टू गो आउट, क्योंकि दोस्ती नहीं है बच्चों के पास में। तो प्रेशर जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, बच्चे को जिस दिन समझ में आ जाए ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और वो मैम कोई नहीं समझा सकता बच्चे को, पेरेंट ही समझाएगा, या तो टीचर हो। एंड एक एक्सरसाइज, अगर आप सच में क्लास में अगर एजुकेटर्स हैं या पेरेंट हैं, एक एक्सरसाइज अपने बच्चों के साथ में मैम स्टार्ट कीजिए। टेल देम टू कीप अ डायरी विद देम। एक छोटी सी डॉट बनानी है उस पे, उस डॉट को देख के, मेरा जब पीरियड स्टार्ट होता है मैम, 4 सेक्शन लेती हूँ, 9th का एक, 10th का एक, 11th का एक, 12th का एक। ये मेरे साथ 4 साल बच्चे रहते हैं। एंड मैम यू विल नॉट बिलीव, मेरे हर साल मिनिमम 5 बच्चों के आते हैं जो वो गोल अचीव करते हैं, और वो बड़े बड़े फिर मैसेजेस लिखते हैं कि मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी पॉकेट डायरी आप रूल बना लीजिए, कंपल्शन बना लीजिए बच्चों के लिए कि फिक्स टाइम पे, मेरे जैसे मैंने फिक्स कैसे किया, मैं जिस जिस क्लास में जाती हूँ मैम, फर्स्ट क्लास मतलब 9th में, सपोज कीजिए मेरा 9 बजे पीरियड आ रहा है, तो मैं पहुंच गई वहां पे टाइम से। हो सकता है 9 बज के 2 मिनट हो, लेकिन वो एक्टिविटी एवरी डे की है।
वो एक्टिविटी में कुछ नहीं होता, वो डॉट होती है, वो डॉट से बात करता है बच्चा और कहता है मुझे ये गोल कंप्लीट करना है। बच्चे को ये सिखाइए कि मेरा छोटा गोल, छोटा इन द सेंस जो मुझे लगता है कि कंप्लीट जल्दी से हो जाएगा, वो 1 वीक का गोल हो सकता है, वो 1 महीने का गोल हो सकता है, वो 1 साल का गोल हो सकता है, लेकिन पहले उसको शुरुआत कीजिए 1 वीक के गोल से। उसको बोलिए 1 वीक में कंप्लीट नहीं हो तो वही गोल सेम रिपीट कर नेक्स्ट वीक। मैम मेरे लिटरली 10th ए तो एक एक्स्ट्रा सेक्शन बन चुका है जहाँ पे वो रोज ही नई नई स्टोरी लेके आते हैं। अब फिर बोलते हैं मैम मेरा एक और कंप्लीट होने वाला है, और वो शिद्दत समझ। एक बच्ची सिंपली आई ऐसे कहते हैं उड़ते हुए, मैम 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 मेरे ना थोड़ी से देखो देखो स्पॉट्स हो गए थे ना चेहरे पे, फुंसी आ गई थी। मैंने बोल लिया आई हैव अ क्लियर स्किन। देखो मैम मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मैंने कहा "अरे बेटा बहुत खूबसूरत लग रही है तो एंड लिटरली मैम वो रोज यही बोलती थी अपनी डायरी पे पॉइंट लगा के, आई हैव अ क्लियर स्किन, आई हैव अ क्लियर स्किन। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि बच्चे अपने कोई भी किसी भी तरह का तब बोलना तो शुरू करो खुद से। और ये चीज मैम जब हम रोज करेंगे ना तो कहीं ना कहीं तो हिट करेगी इंसान। सो लेट्स प्रोसीड, कर सकते हैं वीकेंड टुगेदर। Hamleta madam, you want to say something? Your hand is raised. Yes, yes. Yes, ma'am. I was just, wanting to make a point. Now 100 on 100 marks in CBSE exams are not very important. After CUET has taken place, no? So CUET has been a boon for the students who don't score or unable to score very well. Even 78% is able to get admission into top colleges thanks to this entrance exam. Moreover, cramming and the people who are cramming, the students who cram, who have this ratification का आदत, उनका भी काफी problem होगा. Because, now the knowledge-based questions are there. We know the pattern is completely changed now. We are more into experiential learning. And it is now completely changed. Even if we get top marks, even if you're scoring some in the range of 500 and all in CBSE boards, it holds no importance, except it makes you, comes in merit and all. But CUET, if you want to get into a good college, you have to study all over again for that entrance exam. So that is what I wanted to say. Now the students are under little less pressure, except like Ma'am Sham Chawla said, we need to talk to the parents. Parents are the most important target audience for us. If you want to ease out the tension, it is just the parenting which needs to change their attitude, their academics वाला attitude जो है ना कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, चाहे वो बदतमीजी करे बच्चा, उसको बात करना नहीं आता, उसको टीम मैनेजमेंट नहीं है, उसको सोसाइटी में रहना नहीं आता, कुछ नहीं होगा इसका, Yes. So life skills and parents, that is something we need to link and we need to work majorly on that. Yes, Right, ma'am? Thank you. definitely. Thank you, ma'am. Yes. Yes. So this along with the Hamleta ma'am and all we discussed that 100% पेरेंट्स को चाहिए या बच्चा को चाहिए वो देखना है। क्यों चाहिए? इफ यू आस्क पेरेंट ना क्यों चाहिए तो पेरेंट विल से समथिंग, देन ऑन दिस थॉट पेरेंट्स का जो परसेप्शन है, देन यू अगेन आस्क व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस, व्हाई ऑल द आंसर्स विल कम, पेरेंट्स all problems will be dissolved. Parent will have a new perception altogether. That is why this practice of mindfulness and mindful parenting nowadays, it is not so much popular in India. Yes, not so much popular in India, but we should make it happen because they should understand why. Because in mindfulness, one principle is what is the intention. Whatever you do, you study, you do not study. What is the intention? If we can teach along with our children and connect to the own intelligence, not intellect, the intelligence invested by nature, I think the work of parents will be reduced, tension will be reduced, stress will be zero, and we can handle every situation very properly. So this mindfulness, intention, and moreover, before I start this guided this thing, we should understand, because I always want why ये breathing practice क्यों करना है.
हम जो थे इधर अभी जैसे सोच रहे, the way we are thinking, way we are feeling, we are believing, experiencing, most of the things we had learned, it is just coming, it is just an accumulation type, you can say. कुछ तो जेनेटिक्स के साथ आ रहा है क्योंकि हमने पेरेंट को देखा, हमने जो पेरेंटिंग वो पेरेंट से सीखा है, वही पेरेंटिंग, वही चीज वी आर रिपीटिंग, बट टाइम इज चेंज्ड, वही अगर हम रिपीट कर रहे, वही कंटिन्यू कर रहे, it will be a wrong one. So we need to see the way it is, not the way we learn to see. We should learn to see the way it is. And that is why mindfulness plays a very, very, very important role. And it makes the gap between, or the space between who you are and your accumulation, what you have learned from years, you will make a space, and that space we can understand and we can see those things just the way it is. That is why this mindfulness. So one more thing, those who do not know the mindfulness, it starts, we think it is a simple, but yet it is not so simple, but we have to make it simple through consistency and our commitment. This is paying attention towards breath. We are breathing 50, 60,000 a number of times, but we are not aware of it. We have taken for granted, even at the sleep also, that yes, we are alive. When people went to ventilator during COVID, they understood that it is not to be taken for granted. We should understand. So breathing, and through breathing, we should concentrate in each and every body parts. We'll relax because the stress doesn't accumulate in one place. It is through our every cells, and there are more than trillion cells in our body. And it is not 1 day, 2 days, or 2 months or 2 years. For number of years, stress are accumulated. Through this releasing and healing, it is released, and continuously, whenever negativity comes, we can release it. So there is no question of ending life or threatening life, coming under the depression, nothing as such. We need to take our responsibility. So I always believe my life is my responsibility. And yes, for teenagers, they can't take in that way. With adult, if every adult can promise that my life is my responsibility, and yes, we will work upon it, then the entire world will change without any doubt. So let us start. Wherever you are, just sit in a comfortable place, and you can close your eyes. Just make the sitting comfortable. Gently close your eyes. Focus on your breath. Inhale and exhale through your mouth. Fully exhale. Just pay attention to your body and mind. It is getting relaxed. One more time, you take a deep breath. And exhale through your mouth. More relaxation. Just pay attention. You will feel more relaxation within. One more time. Deep breath in. Exhale through your mouth. Your body is more and more relaxed. Pay attention to your right feet, right foot, then ankle. If there is any discomfort in any part of your body, just pay attention and try to release it.
then calf muscle, then right thigh, your waist, left thigh, left calf muscle, left ankle, left foot. Pay attention to your abdomen region. Any discomfort is just release. Along with the sensation of your breath, pay attention to your chest part. Just observe it is moving up and down. When you're back, when you're sitting straight, your back is becoming in a relaxed state. Your right hand, all the fingers of right hand, left hand, any discomfort, just release it. Pay attention and your sensation of your breath. All the fingers of your left hand are fully relaxed. Your shoulder, which is fully dropped, relaxed. Your head region, neck, your eyes, ears, nose, mouth. Just in a relaxed state. You are fully aware, but completely relaxed. Even if you feel any part of your body is still having any discomfort, please release that part, relax it. Just feel like a complete human being, full of inner power. Just make an oath to yourself. I am a joyful human being, the greatest creation of the nature. I utilize my time in the best possible way, which I really want to do. I love to do. And I help to do. Pay full gratitude to everybody who helped you directly or indirectly. Your parents, your teachers, your friends, and above all, the creation is helping you to survive. Due to the survival, you bow down to nature. We are still alive, means we have immense of power within. With this power, we can change not only ourselves, but also others and the world. Just pay attention to the sensation. Such a good sensation. With this feeling, just stay with this sensation for a few moments.
Such a wonderful sensation of gratitude, relaxation, and with an helping attitude towards society, towards nature, towards the world. Whenever you feel comfortable, you can open your eye and you can share your experience. Take your own time to open your eye and share your experience. Thank you so much. Yes. So, feeling calm. Thank you so much, Purnima ji. Jaya ma'am, feeling calm. Yes, this practice, if we do everyday basis, it may extend to 15 minutes if you can make your time. You will feel, if I tell you that you will feel different, you may believe me or disbelieve me, it is up to you. But when you will experience something, some difference, it's a real difference. There's no question of believing or disbelieving, isn't it? So experience it. Within 5 days, if you are genuinely maintaining 5 days even, but yes, it is not of 5 days, you need to continue it. If you want that experience to make it to continue in your life and to make a difference, a real difference, you will feel that something joyfulness is happening, something really optimism and positive energy. It is radiating from you. And the positive energy which radiates from you, it reaches unconsciously to others. Similar manner, the negative energy radiates, it also unconsciously absorbed to others. So it is our choice. So thank you so much for attending the session. And some of you really up to the last. So that means it is coming from your heart. Nothing more to say. We are really glad to see such a committed people like you, and we want such people that we can do something to make a great difference. Thank you so much, Malavika ma'am. Thank you so much, Harvandan ma'am, and all those who were right from the beginning till now with us. It's as ma'am said, yes, this shows our commitment. At least we are ready to work for everybody, not only us. So once again, I, Rekha Raj, on behalf of the entire community, which has actually taken up the initiative and has come forward to help us out, would really thank you by heart. Thank you so much for coming up with such a wonderful session, Harvandan ma'am and Malavika ma'am, suicide prevention, need of the hour, and really together we can do. And 25th, we'll again meet so that we can discuss. If you really wish to come up as a volunteers, we will definitely discuss how we can come up with the sessions, which are going to start from 7th of October. Thank you so much. If somebody wants to say something, please, you're most welcome. Else, you're free to leave. Thank you so much. Ma'am, if you want to work as a volunteer, so we have to attend the meeting that is on 25th, right? 25th, yes. We'll be Okay. discussing. And yes, of course, we can come up with the ideas how we can grow together. And the link and all you will share on the Yes, same. yes, yes. You are in which group, ma'am? Ma'am, this trainers group. Harvandan only? Harvandan ma'am's group or? No, ma'am. This I had got in the trainers platform too. Okay, Okay, you have my okay. number? Okay. Actually, I forwarded it. That is Okay, Yes, why. okay, fine, fine. Yes, That's good. yes, yes, So, yes. ma'am, if you have my number, I have already posted it. If not, then Yes, again I'll be writing. Fine. yes, you have So, sent it. yeah, I will. 8173560607. Yes, yes, yes. This is my number, personal number, and you're free to talk to me if you don't any day get time, ki ma'am, how we can come forward.
7th October, we are definitely going to start with the mindful session, and we need to bring in more and more people. Yes, we will keep a minimum amount for it, because everybody who joins us says the same thing, that free never works. Yeah, I do believe it. They say they are not actually serious. They'll not be consistent. They'll be coming one day and skipping the other. So we'll be minimum, we'll be deciding it together. I'm nobody to decide. We together will decide how we are wanting people to join us, and that how we can use it forward for helping the community. And of course, again, I'll make a request to you all. Please make a video, maybe of 1 minute, maybe of 2 minutes, so that we can post on different groups, so that it can be on our channels, Tuesha's platform also, and your different channels also. You might be having your own. So you can keep on posting. You may get the viewership, and as we get the viewership, people would be affected, definitely. Ma'am, can it be an audio? I mean, like not just a video, I mean a poem or Actually, ma'am, the audios, people, I think that would work only in podcast. No. I mean, video as in like it can be a kind of a poem. Yes, Right. yes, of course. Anyway. But if it would be continuously coming from your side, it would definitely, the reach would grow. What happens, ma'am? I do work one day and I forget for next 1 month. Then it won't give you a result. What we want is everybody can come up with the initiative. Okay, ma'am, I want to go with this topic and I'll be posting it. Maybe a weekly. You can take the things as weekly. You can take twice a month. Or you want to come up directly every day, you can come, so that we can post it. We can share it on different platforms. Right, ma'am? Insta, LinkedIn, many are there, many platforms. But we will actually speak what is really required. We will not target anybody. We will not put any negative comment. But yes, definitely something which affects people's mind, brain, and soul. Rekha ma'am, Yes, Anjali ma'am. yeah, actually, I wanted to say that is there any group on in which all of you are there, like all three of Yes, you are ma'am. there? We have actually registered. Fine. Many of them have registered already, and registration fee is 70 rupee per year. Fine. Right. And you become a part of our organization, and you will be added into a group. If any one of you have registered and not have been added yet, please inform me, because I too, being occupied in many activities, may forget sometimes. The work may be a bit slow, but yes, it is definitely happening. Ma'am, where Ma'am, we have to register? Ma'am, you send me a hi. I'll share you the link. Okay. Oh, Yes. ma'am, there's a suggestion that make a group for non-registrations also, that maybe if somebody feels like getting added in your group by registering, can do that too. It's already there, ma'am. You may not have Okay. been connected yet. It is already wherein all the people who are not registered, even they have joined. From where Ma'am, they get the link. Yes, ma'am. ma'am, how to get there? Like, I'm not added in any of your group. Okay. Fine. You send me hi, ma'am. I'll add you definitely. Okay, fine. Thanks a lot, ma'am. And it was a beautiful session, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thanks to all of you. Yeah. Thank you, Anjali, ma'am. Yeah, right. Okay. Ramesh, sir, you were saying something? Yeah, it was really a great session and a great initiative, and a majority of the women. That is again, I salute you all because you are so serious, like a mom, no, always serious about a child. सर मम्मियाँ है ना So हम लोग मम्मियाँ है ना, इसीलिए माताएं सबसे ज्यादा दुखी हो जाती हैं जब बच्चे चले जाते हैं। पापाओं को थोड़ा because फर्क पड़ता है, पर वो दिखाते नहीं yes, है। yes. मम्मियों को बहुत ज्यादा फर्क Uh, पड़ता है, चुटकियों में फर्क पड़ता है, इसलिए। we are in a minority, no, we are there. I think 2-3 males But at are least there. you are there, sir. But yes, बूंद बूंद से definitely घट we पड़ता are. है। Yeah, we will definitely going to give you whatever the help you need. Okay, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you. Okay. Okay, great. Okay, we'll end the session here only. Ma'am, you want to say something as a concluding remark, both of you? Yes, madam. Thank you so much, Rekha ma'am, for your initiative, cooperation, and ultimate giving us the platform to speak something, share something. And Harvandan ma'am, that
that the person who made the connection. So I am always grateful to her, and we'll do together many things because we have one agenda. So we'll reach many people. Somebody is asking your mobile number, I think so. Rekha madam. I posted, sir. Vinod, sir. Okay. So we are Okay. done. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you everyone. Thank it's you. like the gratitude, Yes. ma'am, and whatever is